औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी आयानू बखैर आगले नीहाव चुनशुम वशमले ओहाय गंजाइमस गूटन मोर्गन ओला बोंजो प्रीवियत कैफा हाल शुमा चतोरे ahlan वसाहलन मरहबा बूना mucho gracias स्वाबी अब भल्ली करे आया Hoş geldin ayo sayo huyamura chivato chihaljot kalimera khairutan and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and are watching the pre-match analysis on Game On है ख़वातीन और ज़ात मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे and that you guys are equally anticipated and excited about the fact that it's going to be another double-header in the ICC Men's Cricket World Cup 2023. इससे पहले के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूँ, ladies and gentlemen, I would love to introduce my wonderful co-host, who happens to be Miss Roha Nadeem. Hello Roha, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, बहुत ही जल्दी है. Good morning Shehzad, good morning to everyone who's joining us right now on Game On है, double header, double analysis, double gupshup, all of that. We're back with Game On है, another fresh episode. और आज जो है जैसे कि हमने कहा दो मैचेस हैं तो उसी के बारे में हम बात करेंगे. शहजाद, I do think it's a bit, I mean it is a bit early, लेकिन you know when the action is starting this early, हम लोग भी उसी टाइम पे we are back on air with our team, with our wonderful panel. But before we move towards the panel and before we start talking about the games, let's see आज games हैं कौन सी. Let's see the first match that will be taking place today in the Super Saturday. It's going to be between Pakistan and New Zealand. This will be played in Bengaluru. We have a lot of expectations from this match, especially if you're a Pakistan fan. Exactly. Obviously, you know, everybody is a Pakistani fan as well. And but you know, before we speak anything about all of these matches, ladies and gentlemen, I think let's talk about the next game, which will be taking place in Ahmedabad somewhere around 1:30 today as well, and it's going to be in between Australia versus England, and that too in Ahmedabad. The best part is, you know, Rohan, look at the match number 36. We will only be left by 9 matches, you know, right after today as well, and that's something. I think that makes me a bit sad. I mean, it makes us a bit sad, but it kind of tells us a story that we will get enough time to rest as well. Unfortunately, we haven't been able to do so. But ladies and gentlemen, to talk about all of these interesting games which are going to take place today, we have been joined by a wonderful panelist over here right early in the morning. First up, you know, one of the most amazing broadcasters, commentators, and the former Test cricketer himself. He happens to be Mr. Bazid Khan. Assalamu alaikum, Bazid bhai. How are you? वालेकुम सलाम. थोड़ा आज आहिस्ता बोले यार, बहुत सुबह है. सर देखें, अब सुबह सुबह होगी एनर्जी हम पूरी रखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप रखें, फिर हमसे ना एक्सपेक्ट करें. हम कोशिश करेंगे कि आपसे भी वैसी एनर्जी रिवर्स में जरूर ले, लेकिन खवातीन और साथ बाजू भाई के साथ आज सुबह सुबह पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है. द लेफ्ट आर्म क्विक हिमसेल्फ. Whenever he makes sure that whenever he talks about the bowling aspect of any other team or pinch hitting, he always makes the right sense. Ladies and gentlemen, happens to be Mr. Wahab Riaz. Assalamu alaikum Wahab bhai, how are you? Assalam, ठीक ठाक, आप ठीक ठाक. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. Alongside him, ladies and gentlemen, we're very lucky that we have been joined by the former skipper for Pakistan cricket team, Professor himself. इनको प्यार से सुबह सुबह हम चंदा भी बुलाते हैं. He is Mr. Mohammad Hafiz. अस्सलाम हफीज भाई, how are you? वालेकुम अस्सलाम. शहजाद, आप बहुत शरारती हो. मैंने क्या शरारत की? आप इन वहाब के तारुफ में बॉलिंग तक तो बात ठीक है, ये पिंच हिटिंग आप क्यों? सर उन्होंने की है मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, इस वजह से वो खुद भी उस पर प्राइड लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तगड़ा खेलते हैं. ऐसा भी और ये वैसे भी अपने डैडी की जो है वो लेगेसी कंटिन्यू करना चाहते हैं. जो लोग हमारा शो जो है वो डे 1 से देख रहे हैं ना, उनको ये सब जोक्स बात मेरे डैडी की है. बात मेरे डैडी ने की थी प्रमोशन की इन्होंने थी एज ए कप्तान. Alright, ladies and gentlemen, but last but not the least, मेरे ख्याल है हमारी दुआएं रंग लाई. हमने इनकी सेहतियाबी के लिए कल दुआ मांगी थी, अल्लाह ने जल्द से जल्द सुन ली. ख़वातीन और साबिक़ कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम विकेट कीपर बैठे, ये है मिस्टर राशिद लतीफ़. अस्सलाम राशिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. आई होप आपकी तबीयत बेहतर है आज. गुड टू हैव यू बैक. बिल्कुल खैरियत से हैं. आप तो बोलेंगे नहीं जे डॉट के बारे में, हम ही बोलना पड़ेगा. ये जो आज हम कपड़े पहने हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं. फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त है. आप लोगों को नहीं पता चल रहा होगा, हमने पहले भी ब्लैक पहने थे, लेकिन वो फैब्रिक दूसरा था. और जे डॉट और पूरे साल आप पहन सकते हैं. डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं पूरे पाकिस्तान में. और आज आप लेकिन क्या आज आप कीवीज को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बताएं ना. मैं नहीं कीवीज को कर नहीं सकता. शुरू से बचपन से एक ही टीम है हमारी. कौन सी है? पाकिस्तान.
ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान, अभी आपने कहा बचपन से एक ही टीम है। लेकिन सर आज सबसे पहले, इससे पहले कि हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की गेम के हवाले से बात करें, हम सबसे पहले जरा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हवाले से बात करना चाहते हैं। सो योर टेक ऑन टुडेज गेम इन बिटवीन इम्पोर्टेंट ऑस्ट्रेलिया। गेम है, हमने बिल्कुल राइट ऑफ किया हुआ है। इंग्लैंड अगर जीतता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होगा ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन इंग्लैंड की जो बातें अंदर से आ रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं लग रही। बाई नेम बहुत अच्छे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, लेकिन मिल के अभी तक अटैक नहीं किया। लास्ट 2 गेम्स हैं और हमसे रिलेटेड हैं बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान से, उनका चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, और फिर पाकिस्तान का आखिरी मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुआ नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए। एग्जैक्टली हफीज भाई, यहाँ पे एक और भी चीज़ जो मैं आपके साथ तस्करा करना चाहता हूँ, खैर खबर तो वो पहले आई थी, लेकिन इंग्लैंड का इस फैक्ट से अनअवेयर होना कि जी जो टॉप 8 पोजीशंस है वही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी। फिर उनके कोच का एक बयान सामने आना कि जी हमें तो आज शाम से पहले पता ही नहीं था। आपको नहीं लगता दैट दे लुक आउट ऑफ सॉर्ट्स एज अ टीम भी, और फिर ना उनको पता होना कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टॉप 8 पोजीशन क्वालिफाई करेंगी? नहीं, इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत सी केयरलेस चीज़ें हमने इंग्लैंड की तरफ से देखी, लेकिन ये भी उन्हीं की एक कड़ी लग रही है मुझे। अगर कोच को, जो कि ऑब्वियसली टैक्टिकली हर चीज़ से अवेयर होना चाहिए, अगर उनको इस चीज़ का नहीं पता था, तो ये बताता है स्टोक्स के डिसमिसल जो अगेंस्ट इंडिया हुई, वो जिस तरीके से आउट हुए वो इसी को डिस्क्राइब करता है। राशिद जैसे रन आउट हुए वर्सेस श्रीलंका, वो भी उसी तरीके के डिस्क्राइब कर रही है। और बहुत सी ऐसी केयरलेस शॉट्स जो इस टूर्नामेंट में हमें देखने को मिली इंग्लैंड की बैटिंग में, और एक केयरलेस डिसीजन नज़र आए हमें, वो इसीलिए मुझे लगता है सम अप कर रहा है इस पूरी जर्नी को कि इस वर्ल्ड कप के अंदर व्हाट वेंट रॉन्ग। Right. और उस पर सोने पे सुहागा डेविड विली की स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कि वो रिटायरमेंट लेते हैं। दैट इज़ ओके इफ़ यू अनाउंस योर रिटायरमेंट, एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। लेकिन उसको जो डिस्क्राइब किया गया, जो एंगर शो किया गया, जो डिसअपॉइंटमेंट शो की गई, वो बताता है कि इस मरतबा ये वेल निट यूनिट नहीं था, इसीलिए इनकी नाकामियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। बिल्कुल। तो बहुत सी चीज़ें ओपनली जो हैं वो हम कर भी नहीं सकते, लेकिन लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें इनके लिए ख़राब चल रही हैं। गो कि ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं जब ये ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलते हैं। इसको ऐसे ही समझे जैसे पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की राइवलरी है। तो मुझे लग रहा है कि आज के मैच को लेके शायद ये कोशिश करें अपने आप को उठाने की, कुछ बेहतर परफॉर्म करने की, लेकिन अभी तक के सारे सफ़र के अंदर कोई भी चीज़ उनकी आपस में आके मिली नहीं, कुछ सिंक नहीं हो सकी परफॉर्मेंसेस। तो ऑस्ट्रेलिया फॉर श्योर, और ठीक है उनके 2 प्लेयर सुना है कि इंजर्ड हैं, वो मार्च वापस चले गए। मैक्सवेल गोल्फ की शॉट खेल के या जैसे भी वो नीचे गिर गए। तो मुझे लगता है अगर ये सारा कुछ है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया लग रहा है कि बेहतर साइड नज़र आ रही है। राइट वहाब, योर थॉट्स इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? जैसे हफीज़ ने कहा एक राइवलरी तो ज़रूर है, लेकिन इंग्लैंड इतनी डाउन एंड आउट नज़र आई है इस टूर्नामेंट में। ऑस्ट्रेलिया गोइंग इनटू दिस मैच विद 4 विंस इन अ रो, तो किसको आप देखते हैं मेंटली तौर पे, एटलीस्ट अगर हम ऑन पेपर बात ना करें, सिर्फ साइकोलॉजिकली कौन सी टीम जो है आपकी नज़र में बेहतर होगी आज? देखिए मेरे तो ख्याल से ऑस्ट्रेलिया बेहतर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले जब 1-2 मैचेस हारी है, उसके बाद काफ़ी क्वेश्चन होना शुरू हो गए थे, और राशिद भाई ने यहाँ पे बैठ के कहा था कि दे विल कम बैक स्ट्रॉन्ग एंड दे विल शो द वर्ल्ड कि वाई दे आर द वर्ल्ड चैम्पियंस, और इतने वर्ल्ड कप्स उन्होंने क्यों जीते। एंड वी हैव सीन दैट लेगेसी बैक, जिस तरीके से उन्होंने 4 मैचेस जीते एंड नाउ दे आर ऑन द नंबर 3 पोजीशन और नंबर 4 पोजीशन ऑन द टेबल। नंबर तो 3 पे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है उनकी तरफ से। ऑन द अदर हैंड साइड इंग्लैंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट में उनकी तरफ से कुछ खास नहीं आया। ठीक है आप मैचेस हार जाते हैं, बट इट्स टाइम के वेयर यू हैव टू शो योर के एज अ टीम आप किधर खड़े हैं। उनकी एक रेपुटेशन है इंग्लैंड की, बैस बॉल उन्होंने शुरू की, 1 डे क्रिकेट का जो सिनेरियो है और T20 का जो सिनेरियो है वो इन लोगों ने चेंज किया, लेकिन उसके बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद, अगर वो इस टूर्नामेंट में क्लिक नहीं किए तो कहीं ना कहीं देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद देम, और अभी तक हमने नहीं देखा। और दिस इज़ समथिंग वेरी अनयूजुअल कि उनके कोच कह रहे हैं कि जी मुझे तो सिर्फ आधे 1.5 घंटे पहले पता चला है कि यू हैव टू क्वालिफाई फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी, तो आपको लास्ट 2 पोजीशंस पे नहीं आना। सो दिस शोज़ के आई डोंट नो विच फ्रेम ऑफ माइंड इंग्लैंड वाज प्लेइंग, उनका क्या मोटिव था, दे केम अप विद कि क्या करना है क्या नहीं करना, बीच में ऐसी बातें हो जाना, और परफॉर्मेंस, टीम परफॉर्मेंस ना होना, इंजरीज़ भी अब उनको दोबारा से जो वो हो गई हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग अबाउट इंग्लैंड। तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि इंग्लैंड अभी भी उस तरीके से खड़े होकर खेलेगा या Right. मुकाबला कर सकेगा ऑस्ट्रेलिया का। अगर आप देखें तो मेंटली तौर पे ऑस्ट्रेलिया हैव
a very higher edge than England. राइट बीके ऑस्ट्रेलिया के लास्ट फ्यू मैचेस तो बड़े ज़बरदस्त गए, स्पेशली द वन अगेंस्ट नेदरलैंड्स, लेकिन अब ट्रेविस हेड के आने से टॉप ऑर्डर मजीद स्ट्रॉन्ग हो गया है. वी विल टॉक अबाउट दैट, ऑफ कोर्स स्टीव स्मिथ की भी बात करेंगे, बट ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के पास आज वो फायर पावर ज़रूर है. मे बी मैक्सवेल की वजह से वो शायद थोड़ी कमी ज़रूर आएगी, बट ओवरऑल ऑन पेपर डू यू सी ऑस्ट्रेलिया बीइंग स्लाइटली ऑन अ बेटर एज देन इंग्लैंड? अगर आप फॉर्म की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ज़ाहिर है इंग्लैंड से इस वक्त बेहतर खेल रहा है. मैक्सवेल का बहुत फ़र्क पड़ेगा, बैटिंग का तो हमें पता ही है, लेकिन बॉलिंग का उसका बड़ा फ़र्क पड़ेगा. बीच में ट्रेविस हेड को अब बॉलिंग करनी पड़ेगी. ट्रेविस हेड ने बैटिंग तो कर ली, लेकिन अभी तक उसने बॉलिंग नहीं की. वो एक इशू ज़रूर होगा इनको. प्लस मिच मार्श एक और फॉर्म प्लेयर वो टीम से निकल चले गए हैं. अब उनको प्रॉब्लम ये है कि ना स्मिथ फॉर्म में है, ना लबुशेन फॉर्म में है. तो फिर मैक्सवेल पे जब बात आती, मैक्सवेल अब फॉर्म में आ गए थे, वो नहीं है बीच में. अब वो खिलाएंगे ऐसे प्लेयर जो फॉर्म में नहीं है. स्टोइनस बैटिंग फॉर्म में नहीं है, कैमरन ग्रीन बैटिंग फॉर्म में नहीं है. तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस अब चली जाती है वार्नर और ट्रेविस हेड पे, क्योंकि बाकी जो आप 3, 4, 5, 6 कोई फॉर्म में नहीं है. इंग्लिश कह लें थोड़ी सी फॉर्म में, लेकिन 3, 4, 5, 6 कोई फॉर्म में नहीं है. तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी खेल रही है. अगर इंडिविजुअली देखें 5-6 बैटर्स, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी बैटिंग फॉर्म में है. तो वो एक प्रॉब्लम ज़रूर है. इंग्लैंड ऑन दी अदर हैंड, हम वो खुद ही कह रहे हैं कि वी डिड नॉट टर्न अप इन दिस वर्ल्ड कप. शायद उन्होंने प्रेपरेशन में ही ऐसे इजी लिया कि जी बेन स्टोक्स को हम ले आएंगे, वो कर देगा, हम ऐसे कर लेंगे. टूर्नामेंट से पहले आप इकट्ठे खेलते ही नहीं है. ये पहले भी मैं तस्करा कर दूँ कि मेरे ख्याल सारा 2019 से 2013 तक टोटल मेरे ख्याल 6 या 4 लड़के हैं जो इकट्ठे खेले हैं वनडे क्रिकेट, वो भी कोई 5-6 मैच, इससे ज़्यादा नहीं. तो टीम इकट्ठी खेली नहीं है. वो ऑटो पे चल रहे थे. जैसे हम ना, जैसे शहजाद शुरू में 5-7 मैच तो हम बड़ा प्रिपेयर हो गए थे, अब ऑटो पे चल रहे हैं. हम भी अब ऑटो पे चल रहे हैं. तो उसी तरह वो कह रहे हैं हम वर्ल्ड कप जीते, तो हम ऑटो पे चल रहे हैं. दूसरी ना एक बात अभी ख़त्म नहीं हुई. हम जब पहले दिन से आए ना इस वर्ल्ड कप में, तो हमने सुना जी गोल्फ स्विंग होनी चाहिए, हिटिंग पर हफीज़ ने हमें बड़ा कन्विंस किया कि जी गोल्फ खेलो. इस ज़माने में होता था कि फुटबॉल से इंजरियाँ होती थी, अब आए दिन गोल्फ से इंजरी होती है. क्यों राशिद भाई? फुटबॉल खेलते थे यार, ये फुटबॉल क्यों खेल रही है टीम, इंजरी होती है. गोल्फ पे तो कोई और ऐसी इंजरी हो रही है. बेयरस्टोक कितनी देर के लिए चला गया, वो गाड़ी से गिर गया ये मैक्सवेल, लेकिन गोल्फ पे कोई बात नहीं हो रही है. बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रही है. क्यों राशिद भाई? हो गया मेरा ख्याल है. नहीं हो गया क्या? लेकिन अब क्या कर सकते हैं, देखिए फुटबॉल खेलते थे नहीं जी, फुटबॉल बैन. आई थिंक इस टूर्नामेंट में हम सब टीम्स को बैन हो गई थी ना फुटबॉल. सब टीम्स को सिर्फ लूडो खेलनी चाहिए. आई थिंक सबसे बेहतरीन, सबसे सेफ गेम है. कोई इंजरीज नहीं होगी. उसमें आपस में एक दूसरे को इंजर कर देते कि मेरी 2 नंबर तूने फालतू चला दिया. बट यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन, कमिंग बैक टू आवर गेम्स एज वेल, जहाँ पे हम 2 डबल हेडर की बात कर रहे हैं, राशिद भाई और वहाब भाई. ये दिस इज एन ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन जो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जरूर कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि जो अभी तक के स्टैटिस्टिक्स के फिगर्स बताते हैं कि फर्स्ट चेंज के ऊपर जो भी बॉलर आता है, हम सब टीम्स आपके सामने रख रहे हैं. आज पाकिस्तान की बात करें, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की, तो वो अगर विकेट्स प्रोड्यूस करके देते हैं तो हमें रिजल्ट्स बेहतर नजर आते हैं फॉर ऑल द टीम्स एज वेल. यहाँ से आपसे वहाब भाई मैं बात शुरू करता हूँ. सबसे पहले आपके सामने जरा फिगर्स रखते हैं, फिर उसके बाद मजीद कॉन्वर्सेशन करते हैं कि फर्स्ट चेंज के ऊपर जो बॉलर्स आते हैं वो जब विकेट्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो रिजल्ट्स ओरिएंटेट करते हैं फॉर देयर टीम्स. जी, अब सबसे पहले अगर हम देखें दूसरे नंबर के ऊपर न्यूजीलैंड आज हमें नजर आती है. फर्स्ट चेंज के ऊपर 16 विकेट्स है, स्ट्राइक रेट रहा 22.7 का. नीचे आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, 6 इनिंग्स में 9 विकेट्स इन द फर्स्ट चेंज, 5.37 to 29.8. पाकिस्तान डाउन दी ऑर्डर मजीद 7 और फिर उसके बाद 6 और 5.59, 56.8 का स्ट्राइक रेट, व्हिच इज टू हाई. एंड इंग्लैंड सर्टनली एट द रॉक बॉटम बिफोर श्रीलंका. जी देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि वर्ल्ड कप स्पेसिफिकली ये जो वनडे क्रिकेट है, इसमें जो आपका नंबर 3 का बॉलर है जो चेंज पे आता है, फर्स्ट चेंज पे आता है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर इन द टीम. ठीक है. क्योंकि क्या होता है कि जब आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो यू हैव टू कैपिटलाइज दैट स्टार्ट. लास्ट मैच इंडिया की एग्जांपल लेता हूँ कि ऊपर से 3 आउट हो गए थे सर्कल के अंदर, 8 ओवरों में आउट हो गए थे.
अब शामी का काम ये था कि वो आके प्रेशर भी मेंटेन करे और कोशिश करे विकेटें भी लेनी है। एंड वी हैव सीन अ मेजर डिफरेंस व्हाई इंडिया इज़ एट नंबर 1 एंड व्हाई दे हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स, क्योंकि उनमें ये क्वालिटी सबसे ज़्यादा है कि उनके जो नंबर 3 पे बॉलर आते हैं, ही नोज़ हिज रोल वेरी क्लियरली। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम स्टार्ट्स दोबारा देखें तो उसके बाद जो दूसरी टीम हमने देखी है जो आई है, प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया भी इस लाइन में नीचे है, न्यूजीलैंड है। तो आप फर्गसन की एग्जांपल ले लें उसमें कि फर्गसन हैज़ मेड ही इज़ अनदर बॉलर हु हैज़ मेड एन इम्पैक्ट। और उसकी मेजर डिफरेंस ये देखें कि आप जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था उनका और फर्गसन जब रन्स के लिए गया तो उनको 350 प्लस रन्स हो गए। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें 350 रन्स प्लस कर दिए। इसी तरीके से अगर हम नंबर 3 पे आ जाते हैं, उस पर अगर हम देखें तो वो हमारे सामने आता साउथ अफ्रीका का नोकिया, इनका नंबर 3 का मेन बॉलर था जिसने हमेशा, अगर आप रिजल्ट निकाल ले वनडे क्रिकेट में, तो ही हैज़ मेक दैट डिफरेंस। उन्होंने क्या किया, रबाडा जो नया बॉल करता था उसको लेकर आया और रबाडा इज़ नाउ क्रिएटिंग दैट आफ्टर जेंसन, वो आके जो है वो परफॉर्मेंस करता है। इसी तरीके से नीदरलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर बांग्लादेश। तो दिस इज़ समथिंग कि देखें, तीसरे नंबर पे अगर मैं बॉलिंग करने आया हूँ और मुझे ये पता है कि मैं टीम को 8 ओवर में 50, 60, 70 लग गया, तो मेरा काम ये है कि मेरा रोल ये है कि मुझे अब जाके जो है वो अटैकिंग बॉलिंग करनी है, लेकिन वो ऐसी करनी है कि जिसमें मैं रन्स लीक ना करूँ और इकोनॉमिकल, या मैं इकोनॉमिकल रहूँ। क्योंकि अगर मैं इकोनॉमिकल रहता हूँ एज ए नंबर 3 बॉलर, तो जो मेरे साथ स्पिनर्स आएंगे, चौथे नंबर का बॉलर आएगा, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा साय ऑफ रिलीफ मिलेगा, वो थोड़ा सा करेगा। तो ये चीज़ें जो है ना वो तीसरे नंबर वाले के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है आके, कि उसने सारी सिचुएशन संभालनी, अच्छी है तो कंटिन्यूएशन करना है, बुरी है तो उसको आके रोकना है। बिल्कुल। और ये मेजर इम्पैक्ट जिसकी मैंने पहले दिन से बात की थी, क्योंकि ये रोल आइडेंटिफाई होना बहुत ज़रूरी है, उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर हम देखते हैं कि देखें हम कमिंस भी इज़ देयर, कमिंस भी आके अच्छी बॉलिंग करता है, शायद विकेटें उस हिसाब से नहीं है, इस वजह से दे आर डीप डाउन। सही। लेकिन जब आप विकेटें लेते हैं, पार्टनरशिप में बॉलिंग करनी पड़ती है, वहाँ पे फिर आपको पता चलता है कि टीम कहाँ पे खड़ी है। क्योंकि पहले तो नया बॉल होता है, पड़ा बाहर निकल गया, पड़ा अंदर आ गया, 2 आउट हो गए, काम हो गया। उसके बाद 10 ओवरों से लेके जो 25 ओवरों तक का है, अगर आप इस पूरे वनडे टूर्नामेंट में देख लें, तो जैसे ही 25 ओवरों के बाद जो है ना, 20 ओवरों के बाद गेम एक्सटेंड करना शुरू करती है। 20 ओवरों में टीम का स्कोर 105, 110, 100 स्कोर होता है, और उसके बाद जब 30 ओवरों में जाते हैं तो वो 200 पे लगे होते हैं। बिल्कुल। जो अच्छी टीम है वो 200 पे चली जाती है। वो 200 पे क्यों जाती है? क्योंकि वो जो पीरियड है बीच में, वो लेके निकल जाता है, वो उसको पे कैपिटलाइज सो फॉर मी आई थिंक दिस इज व्हाई इंडिया इज ऑन द टॉप, न्यूजीलैंड इज नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे से ऊपर है, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स तो आउट करे, वो भी अभी स्टैट शेयर होंगे, लेकिन हमारे स्पिनर्स जो उस तरीके से रोल अटैक नहीं करे। बाकी ओवर टू राशिद भाई, क्या कहते हैं? नहीं, बहुत ज़बरदस्त ये ऑब्जर्वेशन है वहाब की, और इसमें नज़र भी आ रहा है आपको इंडियन, जैसे हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शामी चेंज में आते थे, क्योंकि शुरू में पांड्या खेले थे। नंबर 2 पे आप देखें न्यूजीलैंड, फर्गसन की बात की, सेंटनर पावर प्ले में आ जाते थे, और इसी तरह साउथ अफ्रीका जैसा बात की, अनरख नोकिया नहीं है तो फिर रबाडा, तो ये टीम पे नज़र आ रहा है। तीसरा बॉलर ये देखिए सामने नज़र आ गया, तीसरा बॉलर अच्छा आता है ना, तो अच्छा है, मतलब तेज़ 140 प्लस, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बॉल होती है पुरानी, उसको आप जगह पे लेके शॉर्ट ऑफ लेंथ भी बॉल कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत अगर मूवमेंट है तो विकेटें भी ले सकते हैं, स्पेशली नाइट मैच में। नाइट में पेस के साथ थोड़ा सा विजन में फ़र्क ज़रूर आता है, जिसकी वजह से बहुत सक्सेसफुल ये बॉलर हैं। अभी हमने बात की, फिर हम पाकिस्तान को देखें मिडिल में या उससे थोड़ा सा नीचे है, उसमें हमारे पास तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है? हारिस जो हमारा मेन बॉलर है। आप कह सकते हो कभी कभार आपका बुरा टाइम आता है, तो हारिस का ये लाइफ में इतना ज़्यादा फेलियर उसको नहीं मिला, T20 खेल रहे हैं वनडे। यहाँ पे देखें कि टारगेट ही उनको किया हुआ है, पहले मैच में आते हैं 25 रन उनको बन जाते हैं, दूसरे मैच में आते हैं 18-20 रन बन जाते हैं, जिस मैच में आ रहे हैं 1-2 बाउंड्री या 3 बाउंड्री वो शुरू में लग जाती, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। जब आपको ये नज़र आ गया कि हारिस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप चेंज कर सकते हैं, क्या ऑप्शन होगी कर सकते हैं। वो चेंज हम नहीं कर पाए, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है वो आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, ये लोगों के लिए जो क्रिकेट खिलाते हैं या खेलते हैं उनके लिए, कि आपका तीसरा बॉलर कितना इंपॉर्टेंट है
ये नज़र आ रहा है। राइट चले यहाँ पे हमने तीसरे नंबर के बॉलर की बात की, तो तीसरे नंबर के बैटर की तरफ आते हैं ऑस्ट्रेलिया के बीके। वापस अब अपने तीसरे नंबर पे वो आ गए हैं स्टीव स्मिथ। उसकी उनकी फॉर्म थोड़ी अप एंड डाउन लगी है इस टूर्नामेंट में, मोर डाउन दैन अप, लेकिन जो उनके नंबर पे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ही सेड ही प्रेफर्स बैटिंग एट 3। इस टूर्नामेंट में अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस में स्कोर किया है, वो दोनों उन्हीं मैचेस में नंबर 3 पे ही उन्होंने स्कोर किया है। आज के मैच में भी वो फिर से यही लग रहा है क्योंकि ट्रैविस हेड इज बैक एंड मार्श इज आउट, सो ही विल बी बैटिंग एट 3। बट स्टीव स्मिथ ईयर बाय ईयर अगर आप उनका देखें प्रोग्रेशन, तो 2023 में इस वक्त वो अपनी सेकंड लोएस्ट एवरेज पे हैं, just 27 from the 11 innings that he has played in one day cricket in this year, just the 250. So BK, what do you think, even if you speak beyond just the World Cup, क्या आपको वजह नज़र आ रही है इस dip in form की? ये जो आपने दिखाया 2011 में तो ये मेरे ख्याल सिर्फ बॉलर थे, तब बैटिंग नहीं करते थे। जब लेटर ऑन इन योर करियर ना स्टीव स्मिथ अभी अगर इसको टेस्ट मैच खिलाएंगे तो ये अपने जो इसकी रिस्ट्रिक्शंस अब आ गई हैं उसके मुताबिक खेलेगा। इसमें प्राइम एग्जांपल आप देख लें यूनुस खान लेटर ऑन इन हिज करियर बहुत ज़्यादा उन्होंने टेस्ट मैच, उनको समझ आ गई थी कि टेस्ट मैच में मैंने रन्स कैसे करने हैं, और आप देख रहे थे कि उनके रन्स रुकते ही नहीं थे। सारी ज़िंदगी वो बॉल इसकी स्ट्रेंथ रही है, अब वो स्ट्रेंथ पे ये आउट होने लगा है। वनडे क्रिकेट में दूसरा जो इसको इशू है कि आपने थोड़ा सा हर चीज़ तेज़ करनी है, वो अपना टाइम नहीं ले सकता। जो टेस्ट मैच क्रिकेट में ये लेता है वो अपना टाइम नहीं ले सकता, वो इशू भी इसको आ रहा है कि अब आपने कई दफ़ा देखा होगा ये ड्राइव ऐसे पूरे फ्लो में ड्राइव मारा है जो कि इसकी नॉर्मल बैटिंग नहीं है। वो क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट है वो कोशिश कर रहा है, और मेरे ख्याल वो स्टेज ऑफ द करियर आ गया है कि जहाँ पे वो ट्रांजिशन इसको मुश्किल लग रही है। अब जो उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पे तो वो ठीक है, लेकिन उसके बाहर जाना अब उसके लिए ज़रा मुश्किल लग रहा है। आई थिंक जो आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक जो सबसे बड़ा जो मुझे इशू लग रहा है ना वो यही है कि एक बंदा जो कभी पैडों पे उसके बॉल नहीं लगता था वो अब शुरू हो गया। हफीज़, आपके क्या थॉट्स हैं? ये जो पॉइंट आउट किया बीके ने, एक अपेरेंट वीकनेस नज़र आई है स्टीव स्मिथ की अगेंस्ट द एलबीडब्ल्यू चांस। देखें वो स्ट्रेंथ थी उनकी जो ये बात कर रहे हैं, और जब आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस बनना शुरू हो जाए तो फिर समझो कि आपका जो सूरज है वो डूबने वाला है। मुझे लगता है कि विद द टाइम जो आपको अपने आप को किसी भी फॉर्मेट में कंटिन्यू करने के लिए वो जो रिक्वायर्ड इवॉल्व करने की एक एबिलिटी या उसकी प्रैक्टिस, मुझे लगता है वहाँ पे स्टीव लेबुशेन ये थोड़ा सा पीछे मुझे नज़र आया। मैंने पहले कहा कि इस पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम में जो मिसफिट हैं ये 2 बंदे नज़र आ रहे हैं। इनको अभी आज टेस्ट खिला दें ये आपको डिफरेंट जोन में परफॉर्म करते नज़र आएंगे, और सबसे डिफरेंट नज़र आएंगे, टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आएंगे परफॉर्म करते हुए। लेकिन वनडे क्रिकेट के अंदर वो जो इंटेंट जहाँ पे आपको बगैर सेट हुए ही आपकी बॉडी एनर्जी उसके अंदर डालनी है, बॉल के अंदर थोड़ा सा पुश करके खेलना है, वहाँ पे आपने थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं टेस्ट के अंदर। यू कैन लीव मैनी बॉल्स, आप सेटल हो सकते हैं, वंस योर बॉडी गेट्स इन फिर आप उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपने पहले बॉल के ऊपर ही आपने अपनी शेप और हर चीज़ के साथ आपने खेलना है। और मुझे लगा है कि स्टीवन स्मिथ इस टूर्नामेंट के लिए ये जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, शायद उनको क्लैरिटी भी नहीं थी कि उन्होंने खेलना ही खेलना है, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से जैसे ये एतराज़ मैं नहीं समझता कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले कभी मैंने सुना कि उनका ये है कि मुझे नंबर 3 पे खिलाया जाए। हालांकि अगर आपकी ज़रूरत नहीं है और कोई और उससे बेहतर रोल प्ले कर रहा है तो आप नंबर 4 पे भी खेल लें, लेकिन क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको वो टाइम चाहिए एक्स्ट्रा जिसको वो एब्जॉर्ब करके या ले के दोबारा कंटिन्यू करते हैं, तो वो उनको नहीं मिल पा रहा। तो शायद वो अनकम्फर्टेबल जोन के अंदर हैं जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि विद द गेम अगर आप इवॉल्व नहीं करते तो आप पीछे रह जाते हैं। वेल, इवॉल्विंग विद द गेम, यहाँ पे हमें इस मैच के बारे में तो जो बातचीत हमने की है उसको रैप अप करते हैं, बिकॉज देयर इज सो मच एल्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट वंस वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बिल्डअप करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के ऊपर भी, और भी बातें करेंगे विद आवर एक्सपर्ट पैनल, तो कहीं मत जाइएगा बिकॉज अ लॉट मोर कमिंग ऑन द अदर साइड ऑफ दैट ब्रेक। गेम ऑन है।
ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक। पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अर्लियर इन द फर्स्ट टैंक हमने बात की जो सेकंड मैच होगा टुडे इन अहमदाबाद विच इज़ गोइंग टू बी इन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। लेकिन अब बात करते हैं भाईजान पाकिस्तान की गेम के हवाले से, और उसकी वजह यह है कि ये आज बड़ी क्रंच गेम होगी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के लिए। I think that we're going to watch that close encounter coming in because everybody, both of these teams from everybody are actually eyeing on to the semi-final spot. जब हम ये बात करते हैं, I think पाकिस्तान के लिए जो यहाँ पे एक पॉजिटिव ज़रूर होगा, वो पॉजिटिव ये है कि अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड की साइड इज़ नॉट इन ऑल स्ट्रेंथ एज वेल. You know, they've been hit with a few injuries and it certainly looks like as if they might not get the right combination out. But Pakistan, since after defeating Bangladesh, might be hoping that they can perform well. Well, that certainly happens to be a question because Pakistan is जीत से पहले 4 losses on the trot and New Zealand 3 losses on the trot. सबसे पहले मैं ज़रा आप सबके सामने सर रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ पाकिस्तान का अगेंस्ट न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद मजीद आगे इस गुफ्तगू को बढ़ाते हैं. तो सबसे पहले ज़रा रिकॉर्ड देखते हैं पाकिस्तान का अगेंस्ट न्यूजीलैंड. काफ़ी उम्मीद होती है इस रिकॉर्ड को देख के, वो ये है कि 9 मैचेस हुए हैं आईसीसी वर्ल्ड कप में राशिद भाई, 7 जो है वो पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ, 2 हम हारे. और जिस तरह की आज की न्यूजीलैंड की साइड लग रही है, क्या पाकिस्तान एडवांटेज ले सकेगा? लेना That's the चाहिए, question. आज लेना का तो चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए हमें. पर बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, पूरी नेशन इस मैच को देखना चाह रही है, जीतना चाह रही है. अब सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं नहीं करते वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. तो आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूजीलैंड की टीम लगातार 3 मैचेस हारी हुई है, इसका एडवांटेज हमें मिल सकता है, लेकिन हम भी मतलब एक मैच बीच में जीते हुए. अदरवाइज इनके जो मेन बॉलर था मैट एनरी वो अवेलेबल नहीं है. जिमी सन आए, वो भी अच्छे ऑलराउंडर हैं, जो कि काफ़ी इंजरीज रही जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे. टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो या T20, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए थे ये. बिल्कुल. लेकिन इंजरीज रही, लेकिन अब वो वापस आए. इम्पैक्ट छोड़ते हैं नहीं छोड़ते वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन प्लेयर वो एज ए बैटर भी एज ए बॉलर भी बहुत अच्छे हैं. हमें जो लग रहा है, हमने जो स्टैट्स देखे या हिस्ट्री देखी इस वर्ल्ड कप की, वही मिडिल ओवर का प्रॉब्लम आ रहा है. मिडिल ओवर में भी स्पिनर्स का प्रॉब्लम आ रहा है. और हमने 80 के एवरेज से सिर्फ 10 विकेट लिए हैं इस वक्त पूरे वर्ल्ड कप में, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन एशिया कप से शुरू हो गई थी और अब तक वो चल रही है. और हम डिपेंड भी उनके ऊपर करते हैं. कभी शादाब खेल रहे हैं, कभी उसामा खेल रहे हैं, कभी इफ्तिखार सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. तो बैटिंग बॉलिंग अपनी जगह पेस की, लेकिन मुझे कंसर्न सिर्फ पाकिस्तान स्पिन अटैक का है कि हम किस तरह से बॉलिंग करते हैं. और सर इसी के साथ हम इसको कनेक्ट भी करेंगे, लेकिन बाजिद भाई आप फिलॉसफी हो या थेरी हो या उनके खेलने का तरीका हो, बेसबॉल हो, आज़ाद मैदान हो, आपने हमेशा काफ़ी अच्छी रिसर्च करके हमारे व्यूअर्स को एनलाइटन किया है. अब कीवीज ये कहते हैं दैट वी विल प्ले द कीवी वे. वो कीवी वे जो है वो क्या आइडियोलॉजी है उनकी? कीवी वे स्क्रैप करना, कि हर सिचुएशन में जो भी ऑड्स हैं उसके अगेंस्ट मुश्किल सिचुएशन है उसमें से अपने लिए फ़ायदा निकालना. मतलब वो कीवी वे है कि नेवर से डाई. वो उनकी वे है कि वो ये नहीं देख रहे कि हमारे पास कौन से प्लेयर हैं क्या नहीं प्लेयर, वो हम खेल रहे हैं व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ अस. वो उस आइडियोलॉजी को ये मानते हैं. जैसे ये रग्बी टीम में भी है उनके, कि जिस दिन जिसके खिलाफ खेल रहे हैं उस मोमेंट में क्या हो रहा है उसमें रहना है, आगे का नहीं देख रहे कि आगे क्या होगा. तो वो आप देखें ना, पिछले मैच में तो इनके पास सिर्फ 11 फील्डर रह गए थे, मैच तो वो हार गए. लेकिन ये आप भूल जाएं कि वो आराम से मैच हार जाएंगे, ये आप भूल जाएं कि वो विदाउट फाइट निकल जाएंगे. वो चाहे उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो चाहे पाकिस्तान से हो, वो हमेशा अपनी जो लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड टैलेंट है उसमें वो मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हैं. पाकिस्तान के पास ऐसा प्लेयर है, पाकिस्तान के पास एक ऐसा प्लेयर है जो बिल्कुल न्यूजीलैंड वाली थ्योरी पे चलता है. उसको जिधर बॉलिंग देते हैं वो बॉलिंग करता है, जहां मसला होता है इसको भेज दो वो करता है. और आप यंगस्टर की बात कर रहे हैं, जो यंगस्टर हमारे की बात टीम कर के रहा हूँ. वो ऐसे प्लेयर है जो न्यूजीलैंड थ्योरी पे ही चलता है. ऑफ स्पिन उसने, जैसे राशिद भाई ने कहा, सबसे अच्छी बॉलिंग वो कर रहा है. लेकिन ये वो प्लेयर है जो आपने जो कीवी वे बताया, ये एग्जैक्ट आपको मिसाल मिलती है कि कीवी वे ये है. क्या बात. राइट. चलें, अभी हमने कंट्रीब्यूशंस तो देखी हैं. लेट्स सी आज के मैच में किस नंबर पे एक तो आते हैं, उसके ऊपर भी हमने काफ़ी बात की है कि व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर इफ्तिखार टू कम इनटू बैट. उस पर भी काफ़ी हमने बात की है. बट
Wahab, I want to talk to you about Pakistan's bowling क्योंकि going into this World Cup हमें ये पता था, अच्छी तरह आइडिया था कि हमारे स्पिनर्स जो हैं थोड़ा सा अंडर पार रहेंगे. जिस तरह एशिया कप हमने खेला और जिस तरह रीसेंट फॉर्म रही है शादाब की भी, नवाज़ की भी, तो ये आइडिया सबको था कि शायद उस तरह से स्पिनर्स मिडल में विकेट्स नहीं ले रहे होंगे. बट अभी तक पाकिस्तान की जितनी भी सक्सेस थोड़ी बहुत इस वर्ल्ड कप में आई है, इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फास्ट बॉलर्स. अभी तक सारी टीम्स का अगर हम कंपैरिजन करें फास्ट बॉलिंग में, तो पाकिस्तान की इस वक्त थर्ड हाईएस्ट विकेट्स हैं पेसर्स की, वो पाकिस्तान की हैं. सो जस्ट बिलो साउथ अफ्रीका एंड इंडिया. 7 मैचेस में 41 विकेट्स हैव बीन टेकन बाय पेसर्स एट एन एवरेज ऑफ 24, ऑलमोस्ट 25. यहाँ पे स्पिनर्स जो हमें एक वॉइड क्रिएट किया हुआ है विकेट टेकिंग के अंदर, यहाँ पे डू यू थिंक कि ये कॉम्पेंसेट हुआ है फास्ट बॉलिंग में? बिकॉज प्रेशर भी उतना ही है, जिन कंडीशंस में इतना स्विंग भी नहीं मिल रहा है, और हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं उनकी ख़ास तौर पे शाहीन की अगर हम बात करें, शुरू के मैचेस में थोड़ी पेस डाउन हुई थी, अब वापस उन्होंने अपना रिदम पकड़ा है. बट डू यू थिंक कि पाकिस्तान के पेसर्स ने कॉम्पेंसेट किया है कहीं ना कहीं फॉर द लैक ऑफ अटैकिंग बॉलिंग स्पिनर्स के एंड से? देखिए, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग हमेशा से बड़ी अच्छी रही है और पाकिस्तान हमेशा से बड़ा डिपेंडेबल रहा है अपने फास्ट बॉलिंग पे. हम लोग नंबर 3 हैं चार्ट पे, और अगर हम देखें तो अगर हम इसको थोड़ा सा ले जाएं, डिवाइड कर दें पोर्शंस में, तो हम लोगों ने जो पहले 25 ओवर हैं या पहले जो 30 ओवर हैं उसमें पाकिस्तान ने टोटल 15 विकेटें ली हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने. इसका मतलब ये है, और इन्होंने तकरीबन पहले 30 ओवरों में से 15 ओवर फास्ट बॉलर्स के रहे हैं. 33% जो है वो फास्ट बॉलर्स ने ओवर किए हैं पहले 30 ओवरों में, जिसमें हमने 15 विकेटें ली हैं जी. दैट मीन्स कि हर 15 ओवरों में हम 2 विकेटें ले रहे हैं. यहाँ पे जो पाकिस्तान का एक थोड़ा सा जो है, अगर ये देखेंगे आप कि इधर ये देखें 112 ओवरों में हम लोगों ने टोटल 15 विकेटें ली हैं बॉलिंग फर्स्ट 30 ओवर्स पे. तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है, और वो कंसर्न इसलिए क्योंकि हमारा जो मेजर फास्ट बॉलर है शाहीन, वो हमेशा नए बॉल पे आउट करता है, और उसने पिछले मैच में 2 आउट किए हैं नए बॉल के साथ. अदर देन दैट हमारे नए बॉल पे हमें उस तरीके से विकेटें नहीं मिली. इसका मतलब है जो पहले 30 ओवर हैं उसमें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने स्ट्रगल किया है. फास्ट बॉलिंग आखिरी जो 20 ओवर्स में की है वो पाकिस्तान ने 5 का इकोनॉमी आखिरी 20 ओवरों में अगर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मेंटेन करें, तो इसका मतलब है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग जाने जाते हैं रिवर्स स्विंग के लिए या डेप्थ बॉलिंग में, उसमें पाकिस्तान का मुकाबला किसी के साथ नहीं है. दिस इज़ अ ग्रेट स्टार्ट. लेकिन ये आखिरी 20 ओवरों का है, तो हमने मैक्सिमम विकेटें ली हैं आखिरी 20 ओवरों में. पहले 30 ओवरों में हम एज अ फास्ट बॉलिंग यूनिट फेल टू गेट विकेट्स. लेकिन इसमें पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का कसूर नहीं है. इधर अगर आप स्पिन का दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा, जो राशिद भाई ने बात किया, कि हमारे स्पिनर्स ने अभी तक वो इम्पैक्ट क्रिएट किया ही नहीं है. Right. अगर दूसरे आप मैचेस देखें कि पहले 10 ओवरों में 12 ओवरों में फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है, पहले 8 ओवर फास्ट बॉलर्स करते हैं, उसके बाद फिर 4 ओवरों का स्पेल हारिस आके करते हैं, और फिर 30 ओवरों तक स्पिनर्स के साथ मिक्सअप रहता है उनका जी. राइट. हम लोगों ने स्कोर वापस खींचे हैं. ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें 350 प्लस होगा, 300 प्लस होगा, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स ने वापस खींचा. सो जो हमारी स्ट्रेंथ है ना वो फास्ट बॉलिंग है, तो लेट्स बैक दैट फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ. हमें पता है नवाज, शादाब, उसामा, दे हैवंट परफॉर्म्ड वेल. उसकी वजह भी यही है कि पिछले रिसेंटली कुछ अरसे में दे हैवंट प्लेड लॉन्ग क्रिकेट. ना उन्होंने 4 डे क्रिकेट खेली, ना उन्होंने 1 डे क्रिकेट खेली, T20 फॉर्मेट तक रहे हैं, उसके बाद उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली. दैट इज द मेजर डिफरेंस कि व्हाई वी आर फेल टू टेक विकेट्स एज अ स्पिन बॉलर. एग्जैक्टली. ये आपने बड़ी खूबसूरती से समझाया. मैं ज़रा हफीज़ भाई को भी इसमें कनेक्ट करना चाहता हूँ. हफीज़ भाई, उसमें जब हम बात करते हैं फर्स्ट से 30 ओवर्स के फेस की, ऑब्वियसली उन्होंने डैमेज का भी जिक्र कर दिया, पेसर्स के विकेट के भी हवाले से बात कर दी. एट एन एवरेज अगर हम 7 मैचेस के अंदर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले 30 ओवर्स में 16, और उसके बाद अगर हम आखिरी 20 ओवर्स देखते हैं तो 9 ओवर्स शायद पेसर्स यूटिलाइज करते हैं. हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी देखा कि बाबर ने he made sure that he is going to take the right decision. Unfortunately हमें विकेट नहीं मिल सकी. लास्ट हमें नवाज को देखना पड़ा अनफॉर्चुनेटली. आपके ख्याल में फर्स्ट चॉइस स्पिनर फॉर 10 ओवर्स कौन होना चाहिए? इफ्तिखार तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी देयर. 5 ओवर्स कराएं, 6 कराएं. अब जब हम इनकी बात करते हैं पेसर्स की, तो पेसर्स की क्या यूटिलिटी फर्स्ट 30 ओवर्स में मैक्सिमाइज की जा सकती है? देखें, आज के मैच को लेके जो अभी तक मुझे इतला आई है वो यही है कि 4 सीमर खेल रहे हैं. ठीक है. उन्होंने सोच लिया है कि हमसे जो गलतियां हुई हैं दोबारा नहीं होंगी. हमारे जो स्पिनर्स अगर वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहे तो वाई नॉट टू गिव अ चांस टू द सीमर्स. लेकिन जो स्टैट पहले 30 और बाद के 30 के, मैं उसको एक थोड़ी सी अपनी समझ जो मुझे है मैं उसके बता दूं
पहले 30 में आप डैमेज करते हैं अगर आप परफॉर्म करते हैं, अगर आप विकेट ले लें और आप डैमेज करते हैं दूसरी बैटिंग लाइनअप को, आखिरी 20 में डैमेज अपना कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल। तो डैमेज कंट्रोल जोन में जब जाएंगे तो आप जीतेंगे नहीं, डैमेज करके जीत सकते हैं। तो पहले 30 ओवर का इम्पैक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लास्ट 20 ओवर्स। यस वी रिकवर थिंग्स बैक, लेकिन वो वही कह रहा हूँ कि वो डैमेज होने के बाद कंट्रोल करने का एक जोन है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी बॉलर खेले वो पहले 30 ओवर में इम्पैक्ट डाले, पहले 30 ओवर में डैमेज करे, चाहे वो फास्ट, मुझे लग रहा है कि आज वो फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहते हैं। आई थिंक हारिस शुड बॉल द न्यू बॉल विद शाहीन, और अगर 3 ओवर में उसकी शेप मिल जाती है फिर दूसरे जो हसन हैं या वो आके दोबारा बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। फॉर श्योर आज स्पिनर नहीं खेले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी तक स्पिनर वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे। और इफ्तिखार एक थोड़ा सा मुझे मुश्किल है कि आई हैव ऑल द फेथ कि वो 10 ओवर कर सकते हैं, लेकिन अगर उन पे अटैक हो गया तो हमारे पास ये ऑप्शन क्या लेंगे? क्या आज सलमान आगा को खिलाया जाएगा या आज किसी और ऑप्शन की तरफ भी वो जाते हैं? देखना ये है कि क्या बैकअप रखने की सोच के साथ ये जाएंगे, क्योंकि ज़रूर होना चाहिए कि अगर इफ्तिखार के ऊपर अटैक हो गया तो अगर उसने 10 ओवर करने हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या आप उसके साथ सलमान आगा के साथ जाते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी जगह किसी और को लेके आते हैं तो फिर वो शायद आपके लिए मुश्किल है। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगा हफीज़ भाई की बात को। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ हफीज़ भाई की बात से, इसलिए क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जितनी बॉलिंग भी पावर प्ले में हारिस ने की है, आई नो कि बॉल स्विंग नहीं हो रहा जो हफीज़ भाई बात करें कि शेप बन जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ लिटिल बिट अंडर कॉन्फिडेंस जब नया बॉल करना है, क्योंकि जब आप एज अ बॉलर आपको मार पड़ जाती है ना तो आप थोड़ा सा थॉटफुल हो जाते हैं, शेकी हो जाते हैं कि यार मैं नया बॉल करूँगा तो उसमें भी 2 फील्डर हैं तो पता नहीं मैं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। ऑन द डे यू माइट गेट इट व्हाट हफीज़ भाई सेइंग, लेकिन मोस्टली आप शेकी रहेंगे तो उसमें यू वोंट बी एबल टू गिव योर 100%। लेकिन आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट में वो ये शेकी फील कर रहे हैं? बिकॉज़ जब शाहीन इंजर्ड थे तब हारिस ने देखिए बात ये है कि ही हैज़ बीन अ फिनोमिनल एसेट फॉर पाकिस्तान। उसने बड़े मैचेस जिताए हैं शाहीन के बगैर भी और शाहीन के साथ भी। फॉर्म ना लगना इज़ पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। एक बड़ा टूर्नामेंट में अनफॉर्चुनेटली उसकी फॉर्म उस तरीके से नहीं लगी, लेकिन आप उससे उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं ले सकते। फॉर मी अगर आज 4 फास्ट बॉलर खेलते हैं और मैं कप्तान हूँ ना तो मैं हारिस को उसके बेस्ट टाइम पे यूटिलाइज़ करूँ। मैं कोशिश ये करूँ कि आखिरी 25 ओवरों में से 10 ओवर मैं हारिस रऊफ़ का करवाऊँ। एक तो गेंद पुराना होगा, कंट्रोल ज़्यादा होगा, फील्ड खुली होगी, एंड देन यू विल ऑलवेज बी इन अ चांस ऑफ गेटिंग द बॉल रिवर्स, और वहाँ पे हारिस रऊफ़ इज़ द मोस्ट लीथल बॉलर इन दिस टीम। डेफिनेटली यहाँ पे रिवर्स की भी बात हुई है। लेट्स सी आज कंडीशंस क्या होती हैं, बिकॉज हमने लास्ट मैच में भी देखा कि आवर बॉलर्स वर एबल टू गेट दैट रिवर्स गोइंग, और अगर आज ऐसी कंडीशंस होती हैं तो मे बी हारिस रऊफ विल बी वेरी इंपैक्टफुल। यहाँ पे हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बट व्हेन वी कम बैक स्पिनर्स की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी बात करेंगे और थोड़ी सोल्यूशंस भी निकालेंगे उस प्रॉब्लम के। कहीं मत जाइएगा, गेम ऑन है। Khawateen Azam, welcome back. Everybody's geared up for Pakistan versus New Zealand, which will be taking place in another 45 to 50 minutes as well. We've been talking about our Pacers and how they've contributed from the phase of first to 30 over or the next 20 overs as well, where they were able to contain that damage. डैमेज हो क्यों रहा है उसके ऊपर हमने बड़ी तफसीली बात की थी। हम उसामा मीर की बात करते हैं, शादाब की बात करते हैं या नवाज़ की बात करते हैं। फॉर रेफरेंस आई एम गोइंग टू टेक यू बैक इन टाइम। सबसे पहले राशिद भाई के पास जाऊंगा, फिर हफीज़ भाई की जाने बढ़ता हूँ। राशिद भाई कुछ स्टैट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखना चाहते हैं कि पाकिस्तानी स्पिनर्स इन इंडिया एंड श्रीलंका की कंडीशंस के अंदर, जो पहले हफीज़ भाई आपके साथ बैठे, सईद भाई, शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस क्या रही, और उसके बाद हम अपने स्पिनर्स जो आज हालिया दौर में खेल रहे हैं उनके ऊपर ये चलो दिखा दिया। लेकिन हम लोगों ने इतनी क्रिकेट देखी है, इनको शाहिद को, हफीज़ को, सईद को, और इनको भी देख रहे हैं।
और बहुत सारी चीज़ें याद हैं। देखिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट के इनमें पावर प्ले में कौन बॉलिंग कर सकता है। देखिए ना, सब बॉलिंग करते हैं पावर प्ले के बाद। अगर हम देखें और डेथ ओवर में सईद अजमल, लेकिन हफीज़ का देखते हैं साथ बैठे हुए हैं, लेकिन 3.89 नज़र आ रही है, ये आपको पूरी ओवरऑल नज़र आ रही है। लेकिन मैं सिर्फ पावर प्ले में जाऊंगा 3.80 है और कम हो गई। तो रिक्वायरमेंट अब ये छोड़ गए क्रिकेट। आपको क्या चाहिए, हमारे पास सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं, जो पावर प्ले में करेंगे तो हमें इफ्तिखार को लेके आना पड़ा। इफ्तिखार भी अच्छी कर रहे हैं। तो जब आप इतने बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हो, जो प्लेयर छोड़ के गए हैं उनकी रिप्लेसमेंट ली आपने। हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ गया है, फ्रेंचाइज क्रिकेट का बहुत ज़्यादा अमल दखल आ गया है। जो लोग फ्रेंचाइज के साथ काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट टीम के साथ भी मौजूद हैं जी। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम हाईली मेरिट पे काम करेंगे। मैं किसी की सोच पे या इंटेंट पे शक नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता कि आपके कुछ लोग जो 10-11 मैनेजमेंट में वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हीं के प्लेयर फ्रेंचाइज के साथ हैं। ये अब इनकी बात कर लेते हैं। ये ज़्यादातर प्लेयर खेलते हुए आ रहे थे। शाहिद का देखा आपने, सईद अजमल ग्रेटेस्ट बॉलर एवर कह सकते हैं सकलैन मुश्ताक के बाद, हफीज़ का दोनों में पावर प्ले में भी और पावर प्ले के बाद भी। बाकियों को देखें, ये फ्रेंचाइज क्रिकेटर्स हैं सारे। ये इनका एक और देखिएगा, 10 ओवर करते हैं, 4 ओवर में डिफरेंट स्टैट्स होंगे, 4 ओवर के बाद डिफरेंट होंगे, क्योंकि इनका आम जो काम करता है 5 ओवर ही तक करेगा, उसके बाद ये आधी विकेटों पे बॉल करते हैं। ये सिस्टम का फॉल्ट है ना, किसी ने असिस्ट ही नहीं किया, किसी ने रिसर्च ही नहीं की कि दुनिया कैसे खेल रही है। एग्जैक्टली। हम जिसने ग्रेट स्पिनर्स पैदा किए, उस दिन रवि शास्त्री या सुनील गावस्कर बोल रहे थे, अब्दुल कादिर साहब का नाम लिया, सकलैन मुश्ताक का नाम लिया, सईद अजमल का नाम लिया, जो ग्रेट गुजरे हमारे वाइट बॉल में। तो अब हमारे पास स्पिनर नहीं है, पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है, तो बाकी ये सवालिया निशान जरूर। हफीज़ भाई, इसमें एक और चीज़ भी साथ में ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जहाँ अभी राशिद ने कहा कि यार पाकिस्तान जो कि खुद स्पिनर्स प्रोड्यूस करते थे, और स्पिनर्स भी ऐसे जो वर्ल्ड रिनाउंड है जिनको सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो जब आप लोग गए तो उसके बाद रिप्लेसमेंट क्यों नहीं ले सके। आप लोगों का जो स्किल लेवल हमें नजर आता है, जब 3.80 की बात की राशिद भाई ने, इकोनॉमी रेट इन पावर प्ले, आप लोगों डोमेस्टिक सर्किट का हिस्सा रहे, वही ट्रेनिंग कैंप्स आपने अटेंड किए। वॉज इट योर टैलेंट और वॉज इट अ पॉलिश टैलेंट जो सबने कंट्रीब्यूट किया फिर, और अगर कंट्रीब्यूट किया तो इन खिलाड़ियों के ऊपर ये काम क्यों नहीं हो सका, और क्या हुआ तो और क्यों नहीं रिजल्ट आया? देखिए, कमी तो नज़र आ रही है। जो स्टैट्स आपने दिखाए, मैं अपने आप को तो निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं इतना अच्छा था ही नहीं। मैं अपने आप को तो बिल्कुल निकाल के बात करूँगा। सईद अजमल और शाहिद अफरीदी, इन दोनों को स्टैट्स चेक कर लें, और आज के जो हमारे जो आज के स्पिनर्स हैं, जो मुझे लगता है कि बाय स्किल्स बहुत शानदार हैं, लेकिन उनकी वो प्रैक्टिस नहीं है। आप मुझे बताएं कि ये 3 नाम है, उसामा, नवाज एंड शादाब, पिछले 4 सालों में कितने फर्स्ट क्लास के मैच इन्होंने खेले। बिल्कुल। ये जो बॉलिंग की बात कर रहे हैं, 4 ओवर पहले की बॉलिंग क्या होती है और बाद के 4 जो 6 ओवर करने पड़ते हैं उसकी बॉलिंग क्या होती है, क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस नहीं है। जब आप स्पिनर जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है तो वो हर इनिंग्स में 30 ओवर करता है, तो 30 ओवर का आपका जो रिदमिक मोमेंट्स हैं आपकी बॉडी की वो चलती हैं, फिर आप टायर्ड होते हो, फिर भी आपके राइट एरिया में बॉल गिर रहे होते हैं, आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं, आप आंखें बंद करके भी बॉल फेंकते हैं तो वहीं पे गिरता है। इसका मतलब ये कि आपका रिपीटेबल एक्शन आ जाता है। यहाँ पे मसाइल ये आ रहे हैं कि पाकिस्तानी स्पिनर्स के रिपीटेबल एक्शंस नहीं है, एक्शन टूट जाते हैं, उसकी वजह से फुल टॉसेज हो रही हैं, उसकी वजह से शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल गिर रहे हैं। और आज की जो रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं जिसमें 5 फील्डर अंदर हैं, वहाँ पे अगर स्पिनर राइट एरिया में हिट नहीं कर रहा, सो ही इज ऑफरिंग वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन एवरी ओवर बाय बॉलिंग अ फुल टॉस, बाय बॉलिंग समथिंग क्लोज टू द बैट, बाय बॉलिंग अ शॉर्ट ऑफ लेंथ दैट हिट मी एनीवेयर। तो वहाँ पे अगर किसी भी बैट्समैन को जब एक चौका या एक आसान बॉल मिल जाता है, उसको तो आपको 6-7 आप रोक नहीं सकते। और अगर आप श्रीलंका और इंडिया, और तीसरी एक कंडीशन है वेस्ट इंडीज़ की, अगर आप यहाँ पे एज ए स्पिनर बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे तो आपने दुनिया के किसी कोने में भी अच्छी बॉलिंग नहीं करनी। तो इशू इन बच्चों का, इन नए लड़कों का यही है कि इनकी फर्स्ट क्लास से दूरी। और अभी बहुत से ऐसे क्रिकेटर जो पिछले 3 साल में खेलते रहे, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने नहीं थे चाहते, लेकिन टीम के साथ ट्रैवल करते थे। तो मैं हमेशा ये पॉइंट आउट करता था कि मेरे भाई वापस जाओ, व्हेन यू आर अवेलेबल प्ले 4-डे क्रिकेट, क्योंकि जब तक आपकी 4-डे क्रिकेट आपको वो आपकी तैयारी नहीं हुई होगी, आप 10 ओवर के बॉलर नहीं बन सकते। आपको जब आपकी प्रैक्टिस ही 3 ओवर की या 4 ओवर की होगी तो कैसे आप उससे बाहर निकलेंगे। तो जो ग्रेट्स ऑफ द गेम निकले हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया है, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेल के अपने आप को पॉलिश किया। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ वो फ्रेंचाइज का इतना ज़्यादा तड़का लग चुका हुआ है
कि हम लोग वो शॉट जो मैनेजमेंट है वो करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को तैयार नहीं करते हाईएस्ट Quick लेवल fix. के लिए, क्योंकि जब आप बड़े लेवल पे तैयार हो जाएंगे, जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट के बड़े प्लेयर होंगे, यू कैन प्ले एनीथिंग। बिल्कुल, और ये स्पिनर्स के ऊपर भी अप्लाई तो बिल्कुल होता है, बट ये पेसर्स पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि Absolutely. टेम्परामेंट जो है आपको सेम चाहिए 10 ओवर बॉल करने के लिए, और वो हमें अभी भी थोड़ा सा मैं इसी में एक छोटा सा वाक्य सुना दूं। वकार भाई हमारे जो ना कोच थे, तो हमारे बॉलर ना, मैं मेरे डैडी पे आ जाते यार, आपको डैडी के अलावा पूरी क्रिकेट में और कोई वाकया याद नहीं। यार, तो जब देखो डैडी डैडी वो डैडी। रिलेट कर रहे हैं ना। अच्छा हुआ ये कि हमारे बॉलर ना, मैं साथ होता था तो मैं देख रहा था कि हमारे बॉलर यूं आते हैं, 4 ओवर किया, पाए ना बॉलर लवो 4 ओवर कर लिख लो। मैं 1 मरतबा 2 मरतबा 4 मरतबा 4 ओवर करके तो बॉल वापस कर रहे हैं। मैं हंस पड़ा, मैं वकार भाई के पास गया, मैं कहा वकार भाई मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जब आप खेलते थे कभी आपने सोचा था कि 4 ओवर करके तो आपने बॉल वापस करना है? यू यूज टू बॉल 20 ओवर्स 15 ओवर्स 10 ओवर्स इन नेट्स, क्योंकि आपको पता था कि आपने कहते यार बस आज का दौर है, जो दौर है ये उसके तो है। मुताबिक हमने करवाना है, इनको 4 ओवर से ज़्यादा बॉलिंग करने को कह दो तो इनके मुंह बन जाते हैं। तो आप सोचें कि ये एटीट्यूड है। तो जब हम सीखना ही 4 ओवर के लिए, प्रैक्टिस ही 4 ओवर की करूंगा तो अंदर तो 2 भी नहीं होंगे। बिल्कुल। जब मैं 15 ओवर रोजाना करूंगा फिर मैं जाकर सोच सकता हूँ ना कि मैं 10 ओवर कर सकता हूँ, और जब मेरी Right. प्रैक्टिस ही 4 ओवर की है तो फिर चिड़ी। यहाँ पे एक शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। व्हेन वी कम बैक वी विल टॉक अबाउट न्यूजीलैंड्स बॉलिंग फॉर अ बिट। कहीं में जाइए, गेम ऑन है। जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात हो रही थी बॉलिंग की, ऑफ कोर्स टेम्परामेंट की, स्किल सेट की, नेट्स की, और आपका जितना भी ऑल ऑफ दैट व्हाट गोज ऑन इन बीइंग साउंड एंड यू नो इन फॉर्म ओडीआई बॉलर। बट अगर हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग को थोड़ी देर के लिए असेस करें, यहाँ पे इसमें राशिद थोड़ा सा सर- एक बता दूं, क्योंकि जी। उनके साथ खेला हूँ जिनकी बात हो रही थी, विकी या वसीम भाई के साथ, वो टॉप 6 बैटर्स को बॉलिंग करते थे। इसका मतलब है कि 12 से 13 ओवर तो हो जाते होंगे बॉलिंग करने में। वो नहीं छोड़ते थे बॉल, क्योंकि वो बोलते थे हमारा काम ही बॉलिंग है, अगर मैं बॉलिंग नहीं करूंगा तो शायद मैं मैच में रिफ्लेक्ट ना करूं। जी। रिवर्स स्विंग की भी, न्यू बॉल की भी, दोनों से वो किया करते थे। वो बड़े फोकस से अपने गेम के लिए, अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए। एग्जैक्टली। जी, यहाँ पे वहाब न्यूजीलैंड की बॉलिंग की तरफ आएंगे। पहले 4 मैचेस ठीक है न्यूजीलैंड जीतते हैं, आखिरी 3 अभी तक वो अपने हारे हैं, और डिफरेंस इन दोनों के इन फेजेस में ये है कि पहले 4 मैचेस में उनके फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग रही थी। इज इट बिकॉज वो 4 मैचेस कंसिडरेबली वीकर टीम्स के अगेंस्ट थे, बिकॉज उनके अगले 3 मैचेस वर अगेंस्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। यहाँ पे हम स्टैट्स भी देखते हैं, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ विकेट्स। एंड बीके में इस पे आपका भी इस पे ओपिनियन लेना चाहूंगी। व्हाट हैज चेंज्ड फॉर न्यूजीलैंड इन द फ्रॉम द फर्स्ट 4 मैचेस टू द लास्ट 3 मैचेस? वहाब, देखिए इंडिया वाले मैच में तो बॉलर्स को ज़्यादा मौका नहीं मिला। 270 का टारगेट था जो चेस करना था, 270 प्लस का। तो उसमें तो ऑब्वियसली जो बैटिंग लाइनअप है उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट, जब भी आप खेल रहे हो और अच्छी बैटिंग कंडीशंस में, तो यू नीड टू स्कोर 300 प्लस रन ताकि आप अपनी बॉलिंग को जो है वो दें। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, अगर बॉलिंग की हम बात करें, बैटिंग की बात करें, तो उन्होंने आते साथ इनके ऊपर अटैक किया। दे न्यू के जो मैट हेनरी था वो इनका मेन बॉलर है, और उन्होंने दे फोकस्ड हिम टू गो आफ्टर। और उसमें भी एक टाइम पे आपको देखा होगा कि 20 ओवर में 22 ओवर में 200 लगा हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया couldn't स्कोर 400 रन, और वो भी एक चंक था नीचे 5-6 ओवरों का जिसमें उनकी डेप्थ बॉलिंग वाज क्वेश्चनेबल। लास्ट मैच में भी उन्होंने आखिरी 10 ओवर में 110 प्लस रन दिए हैं। दैट इज़ अगेन अ क्वेश्चनेबल पार्ट फॉर दैम। सो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जब आप अच्छी टीम्स के साथ खेलते हैं और अगर आप जो है वो कोशिश करते हैं कि आप बॉलिंग को बेहतर करें, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली। लास्ट मैच में एक अनफिट हो गए, उसके बाद सऊदी ने आए फर्गसन की जगह, उनको फर्स्ट चेंज पे बॉल करना पड़ा। आज से पहले उन्होंने बहुत कम कभी बिल्कुल। किया होगा वनडे क्रिकेट में, Batman जो नहीं उनकी रहे। स्किल्स नहीं है उस तरीके से। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटबैक ज़रूर हुआ है न्यूजीलैंड को, उनकी बॉलिंग को सेटबैक हुआ। जो उनके जो मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर थे वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। जो सऊदी हैं वो आके आज दूसरा मैच अपना खेलेंगे। अब देखते हैं फर्गसन फिट है या नहीं फिट है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेस जिधर ये थोड़ा सा स्टक हो गए। यू एक्सपेक्ट कि इतने बड़े टूर्नामेंट में यू लूज़ 1 और 2 गेम्स, लेकिन जो आखिरी 1-2 गेमें हुई हैं
वो तो कंसिडरेबली इनको जो है वो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लास्ट ओवर्स में बॉलिंग कैसे करेंगे ये लोग, यस ये इनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमने देखा कि मोस्टली जितनी भी टीमें उन्होंने आखिरी 10 ओवर में अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन लास्ट 2 मैचों में इनकी टीम ने जो है वो उनको जो आखिरी 5 ओवर हैं उसमें इसका रन रेट 10+ का है। सही। सो दिस इज़ वेयर दे हैव टू कम इन टू प्ले। सेटनर भी जो है वो भी थोड़ा सा ऑफ कलर लगे, उनको भी इन्होंने अटैक किया। रविंद्रा जो था, फिर इन्होंने फिलिप से बॉलिंग कराई, उसने थोड़ी बेहतर बॉलिंग की। लेकिन ये है कि अभी अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान के पास दिस इज़ अ चांस टू बी वेरी ऑनेस्ट कि उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं। आई होप कि प्लान अच्छा करे, दे शुड नो कि किसको अटैक करना है, क्योंकि वंस इफ़ पाकिस्तान ने शुरू में ही अपनी गिरफ्त पकड़ ली तो वो थोड़ा मुश्किल करेगा न्यूजीलैंड। एग्जैक्टली और ये यहाँ पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान कैपिटलाइज जरूर कर सकते हैं ऑल दीज वीकनेसेस एज वेल। हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं, जब वापस आएंगे तो न्यूजीलैंड बैटर्स के हवाले से जरा बाजिद भाई के पास जाना चाहूंगा। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, वी विल बी राइट बैक, क्योंकि गेम ऑन है। Ji, welcome back to Game On Hai. We're building up towards Pakistan versus New Zealand, about to kick off shortly in Bengaluru. हमने बात की दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ्स पे और वीकनेसेस पे, शायद आज ज़्यादा ही बात हुई है बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैश है दोनों टीम्स के लिए, एंड दे विल both the teams will want to put their best foot forward and go in with the best 11. लेकिन वो best 11 क्या है उसके ऊपर भी बड़ी बात हुई है। लेट्स सी व्हाट द कैप्टन्स डिसाइड। जब टॉस होगा तब हम आपको लेके भी चलेंगे, कुछ ही देर में प्लेइंग 11s भी आएंगे, बट उससे पहले जो एक सवाल आई थिंक सबके माइंड्स पे है वो ये है कि मौसम कैसा है बेंगलोर का, बिकॉज सुनने में ये आ रहा है कि शायद सेकेंड हाफ ऑफ द गेम जो है पासिंग शावर से इफेक्ट होगा। वी विल सी, बिकॉज कल जो है वो काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। सो आज आउटफील्ड कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, वो सब देखते हैं जी। पिच रिपोर्ट का टाइम हो गया, लेट्स गो टू बेंगलोर। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम यू बैक आफ्टर द पिच रिपोर्ट। बाजिद भाई, सीधा आपकी जानिब बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पिच रिपोर्ट जो है ना वो थोड़ी सी मुझे लगता है कंफ्यूजन जरूर क्रिएट करती रही है। अभी भी आपने सुना कि ये सरफेस प्रो पाकिस्तान नजर आती है, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर खुदा न ख्वास्ता इस तरह की स्टेटमेंट से गलती जरूर हो सकती है। व्हाट डू यू टेक ऑफ द पिच? नॉट जस्ट दैट, दूसरी जानिब भी देखते तो रचिन रविंद्रा हैपेंस टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स इन दिस वर्ल्ड कप। हर रोज आपको कंफ्यूजन होती है, कभी ऐसे भी कहा करो आज क्लियर प्रो पाकिस्तान उन्होंने कहा आज पिच है, आप क्या कहते हैं? कि आपको इसमें कंफ्यूजन आ गई? मुझे कंफ्यूजन आ रही है। नहीं, पिच ऐसे लग रहा है कि एक तो ये याद रखें कि ये डे गेम है जी। उस दिन मतलब वहाब या राशिद भाई ने कहा कि सुबह उठना एक प्रॉब्लम होता है ज़रूर। तो डे गेम है, प्लस पहले बैटिंग करने में या तो सी जो वो बता रहे हैं कि शायद थोड़ा बॉल फंसे, ड्राई पिच लग रहा है, तो शायद आपको पहले वो फ़ायदा उठाना पड़ेगा। रिवर्स स्विंग क्योंकि ड्राई है, रिवर्स स्विंग भी आ सकते हैं उसके अंदर। पाकिस्तान प्रो पिच तो मुझे नहीं पता कि प्रो है कि नहीं है, लेकिन पिच ये ज़रूर कह रहा है कि इसमें आपको जो ज़्यादा फ़ायदा होगा वो पुराने बॉल से होगा। शायद नया बॉल थोड़ा सा फंसे, लेकिन पुराना बॉल इधर स्विंग रिवर्स स्विंग ज़्यादा हो सकता है और उसमें रन्स बनाना ज़रा मुश्किल हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप पहले बॉलिंग करें, क्योंकि शाम को जिस तरह न्यूजीलैंड की बॉलिंग है वो के पास इतना रिवर्स करने वाला नहीं, और आफ्टर लंच मेरे ख्याल जो वो टू पेस नेचर होगी वो शायद ख़त्म हो जाए। जो टू पेस नेचर है वो ख़त्म हो जाएगी। इस मौके पे मैं एक स्वीट एंड शॉर्ट ब्रेक की जानिब आपको लिए चलते हैं। वापस आएंगे तो वहाब भाई की जानिब भी बढ़ते हैं कि जो बाजिद भाई कह रहे हैं क्या वो आज पाकिस्तान के लिए पिवटल होगा, इम्पैक्टफुल होगा। गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात अभी हो रही है पिच रिपोर्ट की। हमने देखा बेंगलोर में
उसी के बारे में मजीद बात करते हैं। वहाब, व्हाट डू यू मेक ऑफ द सरफेस? यहाँ पे बात अभी कर रहे थे शाहीन को जिस तरह की बाउंस मिली थी लास्ट मैच में। हाउ डू यू थिंक दिस पिच विल बिहेव इन अ डे गेम टुडे? आप कुछ बनाए ना बनाए, मेरी कुल्फी बन गई। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंस है ओपिनियन में, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि शाहीन ने जिस विकेट पे आउट किया था वो ज़्यादा अच्छा बैटिंग विकेट था, और ये वाला विकेट वो विकेट है जिसमें श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच हुआ और उसमें जो है वो बॉल फंस के आया, और थोड़ा सा जो वैरायटी है स्लोअर वंस वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं। सो जो विकेट लग रहा है मुझे ऐसे, वो तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि विन द टॉस और बोल फर्स्ट, और उसमें ये है कि क्या कहते हैं दूसरी टीम को आप जल्दी आउट करें और उसके बाद यू हैव अ चांस टू के टारगेट क्या है। सो डिपेंड करता है। अभी उन्होंने कहा विकेट जुड़ा हुआ भी है लेकिन विकेट लो बाउंस भी है, और 270 280 ये कुछ समझ नहीं आई, लेकिन जितना मैंने कंडीशंस देखी ड्राई कंडीशंस हैं, और आई होप के उसमें आप लोग टॉस जीत के जो है वो पहले बॉलिंग करके जो है वो यू मेक एन इम्पैक्ट। राशिद सर, 4 फास्ट बॉलर्स? ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास 3 अच्छे स्पिनर होते हैं अफगानिस्तान की तरह, हम जाते हैं उनके साथ। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमें ऐसे बॉलर के पास जाना चाहिए जो एक्सपीरियंस है। वो हसन अली है, वो रिवर्स स्विंग भी, मिडिल ओवर में भी, नए बॉल से भी वो इफेक्टिव है। अब देखते हैं प्लेइंग 11 हमारी क्या होती है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मैं एक सवाल करूंगा आप तीनों से, अगर हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, स्टिल वी शुड बॉल फर्स्ट और वी शुड बॉल सेकंड? क्योंकि हम डिपेंड तो अपनी फास्ट बॉलिंग बॉल फर्स्ट। इस डे मैच में बॉल फर्स्ट। अच्छा, आप किसको बिठाना चाहेंगे हफीज आज के मैच के लिए? if we go with the 4? देखिए बिठाना तो किसी को भी मसला ही नहीं है ना आपके लिए, क्योंकि वो उनकी परफॉर्मेंसेज ही नहीं आ रही। उनको तो खिलाया जा रहा है कि खेलो, ताड़ी मेहरबानी खेल लो, वह भी मैच खेल लो, बट वो नहीं हो रहा उनसे। तो इस वक्त बेस्ट डिसीजन यही हो सकता है इन कंडीशन के अंदर कि आप 4 सीमर के साथ चले जाएं एंड वेट फॉर द रिवर्स स्विंग, जो कि इस पिच पे नजर आ रहा है कि डेफिनेटली होगा। नया बॉल कौन करेगा, ये एक स्टोरी है जो मुझे लगता है हारिस रऊफ को ज़रूर देना चाहिए नया बॉल। हसन जो है वो राइट एरिया में हिट करते हैं, तो वो नंबर 3 पे आके फर्स्ट चेंज की जो इम्पैक्टफुल बॉलिंग है वो उनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हसन से। तो अगर ये ऐसा किया जाए तो मुझे लगता है कि राइट टैक्टिक होंगे। और दूसरी जानिब हो सकता है कि हमें शायद आज केन विलियमसन भी बैक इन एक्शन जरूर नजर आए। और इसके साथ एक और भी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हम ओवरकास्ट कंडीशंस की बात करते हैं, आज उन्होंने दिखाया काफ़ी बादल जो है वो झुरमट में नजर आ रहे थे 27 to 20 डिग्रीज, तब भी आपको लगता है कि बॉलिंग का डिसीजन यही रहना चाहिए या कोई इम्पैक्ट हो सकता है? नहीं, आपको बॉलिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि इस पिच के ऊपर ये जो जितनी ड्राई उन्होंने बताई है उसकी वजह से बॉल थोड़ा डबल पेस आता है, थोड़ा सा बॉल बल्ले पे वो जो हिट थ्रू द लाइन है वो आपको ये पिच नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे एक ग्राफ्टी किस्म की जो है ना आपको इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल क्लोज टू द बैट खेलना पड़ेगा, आप ऑन द अप नहीं खेल सकते। इसलिए यहाँ पे केन विलियमसन उनकी तरफ से बहुत बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम, क्योंकि वो पास बॉल को खेलते हैं। यहाँ पे वो जो थोड़ा आगे से जाके खेलने की कोशिश करेगा उसको हो सकता है डबल पेस की वजह से मुश्किल आए। तो बेस्ट डिसीजन यही है पाकिस्तान की फेवर में, हमें सिर्फ इतनी दुआ करनी चाहिए कि हम टॉस जीतें और हम बॉलिंग जरूर करें, बाकी देखते हैं क्या होता है। आज तक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वैसे हम ज्यादातर टॉसेस जीते नहीं है, मेरे ख्याल है टॉस काउंट भी शायद जो है वो समवट हम मैच बहुत जीते हैं आईसीसी इवेंट में, हमारे रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। और रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन वो टॉस हारने के बाद अच्छा है। तो मेरा ख्याल है गालिबन आज टॉस हारना चाहिए, जीतना चाहिए तो वक्त हारना चाहिए। राशिद कह रहे हैं जो हार रहा है वो मैच जीत रहा है। जो हार है वो मैच जीत रहा है। अभी से मेरे ख्याल है सिर्फ 2-4 गेम्स अगर हम पीछे जाए तो तकरीबन बराबर था, 15-15 का काउंट चल रहा था। अच्छा, अब शायद हो सकता है 2-3 गेम्स में चेंज हो गया हो इस तरह का स्टैटिस्टिक, तो फिर हम कह नहीं सकते। नहीं, उसमें ये कि टॉस डिसीजन क्या लिया उन्होंने, 15 ने बैटिंग की या 15 ने बॉल बैटिंग करवाई दूसरे को, ये देखना पड़ेगा। टोटल पहले बैटिंग करने वाले कितने जीते, दूसरी बैटिंग करने वाले कितने। अच्छा वहाब, यहाँ पे उसामा मीर के बारे में आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट हिम। उन्होंने 2 विकेट्स दिए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वार्म अप मैच में। डू यू थिंक वो कोई फैक्टर होगा या आज भी वो फैक्टर चला गया काफी देर पहले था। देखिए अभी जो करंट फॉर्म है उसामा की ना वो इतनी अच्छी नहीं है। उसामा जो है वो रिसेंटली जो पीछे इनके साथ सीरीज़ थी उसमें तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जिस विकेट पे इनको असिस्टेंस ज़्यादा मिल रही है वहाँ पे इतने ज़्यादा ये अभी तक कामयाब रहे नहीं, परफॉर्मेंस नहीं आई हुई। अदरवाइज इस पिच के ऊपर अगर स्पिनर के कॉन्फिडेंस हो तो वो बॉलिंग ना करे, ये समझ से बाला था। जहाँ पे डबल पेस हो, जहाँ पे थोड़ा बॉल रुक के आ रहा हो, वहाँ पे अगर स्पिनर बॉल ना कर सके, और ये हमने श्रीलंका में भी देखा, एशिया का भी मसला आया, पूरे वर्ल्ड का भी मसला है। तो मसला कॉन्फिडेंस का है, पाकिस्तान के स्पिनर्स का कॉन्फिडेंस इस वक्त शैटर्ड हुआ है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि फास्ट बॉलर। लेकिन वो कोच ने बता तो दिया क्यों हुआ। हाँ, कुछ आया था।
कोच ने कहा कि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में है, कोविड में लग रहे हैं हम लोग। नहीं, उन्होंने कोविड साथ में ये भी खेल कहा रहे कि हैं। मैं इसको दिल एक्सक्यूज की पाकिस्तान तरह नहीं कह रहा, उन्होंने साथ ये भी बात की है कि मैं हाँ, ये नहीं एक्सक्यूज नहीं बना रहा। एक्सक्यूज नहीं देते, सिर्फ बात करते। लेकिन वो अपेरेंटली शायद ऐसे ही लग रहा है। लेकिन बाजिद भाई की जानिब से बढ़ना चाहता हूँ वेरी क्विकली। टॉस से पहले केन विलियमसन एट नंबर 3, रचिन रविंद्रा एट नंबर 2। ये बैटिंग उनकी कॉनवे पे बहुत डिपेंडेंट है। विलियमसन को छोड़ें, रविंद्रा को छोड़ें, जब कॉनवे नहीं रन्स कर रहा तो उनकी टीम मैच नहीं जीत रही। ठीक है, तो वो उसका आउट होना शुरू में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर वो स्कोर करता है तो फिर बाकी केन विलियमसन, रचिंद्रा, ये सब फिर उस गेम में आ जाते हैं। मेरा ख्याल कॉनवे और फिलिप्स ये डेंजर मैन है पाकिस्तान। एग्जैक्टली। लास्ट इनिंग्स में भी हमने फिलिप्स को वैसे स्कोर करते हुए देखा। आई थिंक वाज अ वंडरफुल इनिंग। अनफॉर्चुनेटली वो रिजल्ट नहीं गार्नर कर सके रोहा, बट टॉस ही डिसाइड। आज इंटरेस्टिंग होगी देखना कि क्या चेंजेस लेके जाती हैं। अभी सबके माइंड्स में आई थिंक यही सवाल है कि क्या कॉम्बिनेशन दोनों टीम्स, बिकॉज we will be expecting some changes in that New Zealand team as well. Williamson is coming back in, of course. Then you know, no Matt Henry, Jimmy Neesham के ऊपर भी अभी थोड़ा फिटनेस का we have to see आज वो किस तरह किस फिटनेस के साथ उतरेंगे. But yeah, a lot of you know, uncertainties ahead of this game. But as you can see on your screens as well, the teams are making their way to the stadium, and it is going to be a must-win contest. Exactly. I believe that teams might be there by now, but certainly it's a crunch game, you know. So for all our viewers who are out there, for all the Pakistanis, for all the Kiwis. All right, ladies and gentlemen, welcome back. And the news from Bengaluru is that Pakistan have won the toss and they are going to ball first. जी, वैसे ही हुआ जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने भी यहाँ पे तस्करा टीम किया क्या था। खेल रही है? टीम क्या खेल रही है? जी सर, टीम क्या खेल रही है? टीम्स अभी आती है तो हसन हम आपके अली साथ शेयर नहीं करते खेल हैं प्लेइंग 11 में. बट हसन अली मैंने आंखें बंद कर ली इज बैक. राशिद सर, नहीं, हसन अली अच्छा इजाफा है। और शुरू में जब आए थे तो हमने यही कहा था यार शायद अच्छी बॉल ना कर सकें, इनका परफॉर्मेंस नहीं है। कन्विंस किया था वहाब ने हमें, और राइटली किया था कि एक्सपीरियंस। फिर 3 यहाँ इंडिया में आप लो बाउंस होता है, 3 स्टंप के अंदर बॉल करें, टॉप ऑफ द स्टंप, आपको सक्सेस मिलेगी। ज़्यादा इन्होंने ट्राई नहीं की, तो अच्छा इजाफा है हसन अली का। राइट. हफीज, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बाबर ने की है कि मैं मैच फिनिश नहीं कर पा रहा हूँ, आज कोशिश करूंगा कि लंबी इनिंग्स. मुझे लगता है बाबर इस पिच को देखते हुए जहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल इनिंग्स खेलने की ज़रूरत है, पास आके खेलने की ज़रूरत है, तो बाबर का रोल बहुत अहम है आज के मैच के लिए, जीतने के लिए. लेकिन जो देखें, 2 डिफरेंट टीमों के 2 डिफरेंट कॉम्पोजिशंस हैं. हमारे पास क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या बैडली हम अच्छे स्पिनर के राइट एरिया को मिस कर रहे हैं, और इसकी वजह से हम अब हमने सोच लिया कि हमने उनको नहीं खिलाना, तो 3 स्पिनर होने के बावजूद हम उनको खुडे लाइन लगा दिया और हम लेके आए हैं फास्ट बॉलर. दूसरी जो हमारी टीम है, जो अपोजिशन है, वो स्पिनर जिसने अभी तक मैच नहीं खेला उसको वापस लेके आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि इस पिच के अंदर वो चीज़ें मौजूद है. अगर आप राइट एरिया में हिट करेंगे तो इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज फॉर अ बैट्समैन. लेकिन हमारे पास क्योंकि ऑप्शंस ही नहीं है, और हम अगर देखें, अगर शादाब को इशू है, अगर वो कंकशन रूल की वजह से या किसी भी उनकी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं अगर अवेलेबल, तो अबरार को ले लेते, उसको रिप्लेस करके उसको आप खिला सकते हैं. लेट्स थिंक समथिंग जो पाकिस्तान के लिए काम कर सके. लेकिन इस वक्त आई विश ऑल द बेस्ट कि पाकिस्तान की टीम की जो बॉलिंग आई है, ये एक बहुत बेहतर डिसीजन है कि टॉस जीतना एक बेहतर स्टार्ट है पाकिस्तान का. अब फास्ट बॉलिंग किस एरिया में, पहले 30 ओवर में इम्पैक्ट ज़रूरी है, आखिरी 20 में हमें नहीं चाहिए. वो होता रहेगा, वो फॉलो अप किया जाएगा, तो डैमेज कर दें, डैमेज कंट्रोल ना करें. एग्जैक्टली. बाबर भाई, मूविंग ऑन टू यू. बाबर ने कहा कि टॉस जीतकर गेंद फेंकने का फैसला इसलिए किया क्योंकि देयर इज अ लिटिल बिट मॉइस्चर in the wicket. How much do you think it's going to help our players in the first power play? देखिए, इसका एडवांटेज तो लेना चाहिए. नए बॉल पे यू नीड एटलीस्ट 2 विकेट्स, और अगर आप 2 जल्दी आउट कर देते तो आप न्यूजीलैंड को बैक फुट पे कर लेते. यहाँ पे अभी भी जिस तरह बात की बीके भाई ने कि कॉनवे जो है, जब तक वो रन्स करें न्यूजीलैंड जीत रहा है, जब वो रन्स नहीं करते तो उनको उस तरीके से रन्स स्टार्ट नहीं मिलता. सो आई बिलीव कि ये जो नया बॉल है दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इट कुड बी वाइस वर्सा कि अगर नए बॉल पे आपने आउट नहीं किए तो यू नेवर नो कि ये आपके ऊपर अटैक करें और दे गो फॉर द रन्स, क्योंकि इन्हें ये पता है कि पाकिस्तान की ये कैपेबिलिटी है कि आखिरी 20 ओवर में आपको उस तरीके से रन्स नहीं करने देंगे. वाजिब भाई, योर टेक. पाकिस्तान ने तो अच्छी चेंजेस किए. मुझे न्यूजीलैंड पे थोड़ा सा डाउट इसलिए हो रहा है कि उनकी बॉलिंग, बैटिंग तो पहले कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग सऊदी को उन्होंने परसिस्ट किया, सऊदी को खिलाया है. सऊदी पिछले मैच वापस आया, वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं था. ट्रेंट बोल्ट ठीक बॉलिंग कर रहा है.
अब फास्ट बॉलर उन्होंने नहीं खिलाया, उन्होंने इस सोडी को खिलाया। इस सोडी इस टूर्नामेंट में मैच नहीं खेला और पिछले एक बांग्लादेश बिफोर द वर्ल्ड कप एक बांग्लादेश के खिलाफ उसने 6 आउट किए हैं, लेकिन वो रन्स लीक कर सकता है काफ़ी सारे, ऐसे नहीं है थोड़े, वो काफ़ी सारे रन्स लीक कर सकते हैं। तो चांस लिया उन्होंने बहुत बड़ा। जी एग्जैक्टली राशिद भाई, अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लेइंग 11 हमारे सामने मौजूद हैं, whoever wants to take the lead please go ahead। जो भी आ जाए बाजी भाई, कोई पार्टनर आ जाए। जिस तरह से कहा कि बाजिद ने कहा कि कॉनवे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, साथ में फ्लिप्स हैं इनके पास, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो इस वर्ल्ड कप में इनके लिए खेल रहे हैं वो मिचेल हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हैं। और मेरे पसंदीदा प्लेयर जो हैं वो चैपमैन है, और जो कि स्पिनर्स पे इनके बैट स्विंग बहुत ही अच्छा है। अगर इनकी बैटिंग आई जी फिर बोल रहा हूँ, अगर इनकी बैटिंग आई मोस्ट डेंजरस प्लेयर होंगे। बॉलिंग में जिस तरह से हमारे पैनल ने कहा इस सोदी को लेके आए, और ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इनको फ्लिप से बॉलिंग करानी पड़ेगी, बीच में मिचेल से बॉलिंग करवाई नहीं, रविंद्रा इनकी शेयरिंग करनी पड़ेगी। 10 ओवर शायद पहले मैच में मुश्किल हो जाता है, आप अगर बॉलिंग लंबी नहीं की होती तो 10 ओवर मुश्किल होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि पिच का बिहेवियर कैसा है। अगर ब्रेक मिल रही है, अच्छी बॉलिंग हो रही है, तो शायद भी 10 ओवर कर सकें। चैपमैन तो आपने पॉइंट आउट किया। मैं बॉलिंग की अगर आप बात करें ना, सऊदी को 10 ओवर करने पड़ेंगे। सऊदी का एक अच्छी चीज़ ये है कि ये रिवर्स स्विंग ऑफ स्टंप के बाहर लाइन पे बॉल करते हैं ज़्यादातर, ये एडवांटेज हो सकता है। सोडी सैटनर तो अच्छी बॉलिंग कर रही है, ये 4 अगर करते हैं तो 40 ओवर बनते हैं। अब 5वां बॉलर ग्लेन फिलिप्स, 6ठा बॉलर चैपमैन एंड रविंद्र एक और है कोई? नहीं, 6 बॉलर आएंगे आज। ये रविंद्रा है ना, बीके भाई, रविंद्रा है एंड ना, में छह। कौन बॉलिंग करेगा? एंड में आई थिंक बोल्ड जरूर करेंगे, सेंटनर के 1-2 ओवर जरूर रखेंगे 40 ओवर के बाद। लेकिन और हमें धोखा दे गया विलियमसन, उसने कहा था 2 चेंजेस, नीशम का तो उसने बताया ही नहीं। हाँ जी पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर तो रऊफ, वसीम, अफरीदी, ये सिलेक्शन ठीक है। अब इफ्तिखार से डिपेंडेंट है, उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। सलमान अली आगा खेल रहे हैं मैच, आया कि उसको बॉल मिलता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा उसको। आज शायद एज 6 बॉलर है ना, तो शायद इसको बॉलिंग करनी पड़े, लेकिन जो नया बॉल जो स्टार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम डिपेंडेंट हमेशा शाहिन शाह अफरीदी बॉल करे, मेरा ख्याल है कि हसन अली को नया बॉल कराना चाहिए। देखिए, अगर इस पिच को अगर जांचना है, देखना है, तो इफ्तिखार जैसे पिछले मैचेस में कहा न्यू बॉल करवाई है, शायद अगर ग्रिप हुए तो आपके आउट करने की चांसेस अगर दोनों लेफ्ट हैंडर हैं तो चांसेस तो बनते हैं इफ्तिखार के। 2 ओवर इनको शुरू के कराने चाहिए, वरना आपके पास पूरी स्लॉट है, 4 फास्ट बॉलर हैं, और ये 2-3 तो ऐसे हैं जो कि मिडिल ओवर में रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। स्पेशली आज हारिस रऊफ का बड़ा इम्तिहान है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। लेकिन 4 फास्ट बॉलर रखने के बावजूद आप स्पिनर से नया बॉल करवाएंगे? लेकिन सबसे इफ्तिखार ने लास्ट मैच में 10 ओवर लेकिन आप 4 फास्ट बॉलर लेकिन पहले ओवर इसमें में क्या है काफी कि स्कोर कंसीड किया। क्योंकि वो बीच में बनते नहीं है, बीच में फिर अगर विकेट नहीं गिर रही वो आराम से इनको टैकल कर लेंगे। अगर ये इनके ओवर आप शुरू में या तो छुपाने की बात होती है, निकालने की बात होती है, या कोई एक बोनस विकेट लेने की बात है, तो इफ्तिखार बेहतरीन बॉलर बनता है। थैंक यू सो मच। सबसे अहम रोल, थैंक यू सो मच जेंटलमैन। नहीं थैंक यू नहीं, सबसे अहम रोल जी वो हम तो इसकी रहेगा। बात नहीं कर रहे, ये अगर परफॉर्म करता है तो पाकिस्तान बहुत आगे तक जाता है। इम्पैक्ट प्लेयर्स अपने अपने बता दिए हमारे पैनलिस्ट ने। और वहाब, यहाँ पे क्विकली आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द वेदर, बिकॉज इस वक्त लग रहा है फोरकास्ट है, अगर बारिश होती है सेकंड इनिंग्स में तो किस तरह पाकिस्तान को ये चेज जो है अपना पेस करना चाहिए? देखिए, बड़ा एक ये डिसीजन जो है वो पॉजिटिव इन द सेंस इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर बारिश होती है तो वनडे क्रिकेट में पहले 20 ओवर काउंट होते हैं, उसमें जिस भी एवरेज से स्कोर हुआ होगा या न्यूजीलैंड ने किया होगा उसका टारगेट जो है वो मिलेगा पाकिस्तान टीम को। सो दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि हम लोग टॉस जीत गए, प्लस मौसम अच्छा है, प्लस मॉइस्चर है, तो आई बिलीव कि हम लोग ऊपर से उनके कोई 2-3 आउट करेंगे आज, ताकि हम लोग स्ट्रेट अवे मैच के अंदर हो, क्योंकि हमें अपना रन रेट भी बेहतर करना है। ये नहीं कि हमें मैच जीतना, हमें अपना रन रेट भी बेहतर करना है, इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड का आखिरी मैच श्रीलंका के साथ। एग्जैक्टली। चलें आज, अब क्योंकि अब बॉलर्स की इतनी बात हो रही है, विकेट्स की और कंडीशंस भी, फोरकास्ट कंडीशंस हैं, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी जो है वो बॉलिंग के रिलेटेड है। इट इज टाइम फॉर जे डॉट क्वेश्चन ऑफ द डे। टेक आउट योर थिंकिंग हैट्स एंड पुट देम ऑन, बिकॉज वी आर आस्किंग यू who will be the highest wicket taker of today's match. Quite a few players to choose from. अभी हमारे पैनलिस्ट से भी क्विकली पूछ लेते हैं। राशिद सर, पाकिस्तान से होगा या न्यूजीलैंड से होगा? मोस्ट विकेट्स जी पाकिस्तान। आज हम एक एक पूछेंगे क्योंकि टाइम कम मुश्किल है। यार, मुश्किल। एक बताएं। कौन होगा? पाकिस्तान। होगा कौन? होगा कौन?
शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी, राशिद लतीफ़ साहब परवाज करना चाहते हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ। जी हफीज भाई। शाहीन अफरीदी। और भाई मेरी मर्जी। शाहीन क्या बात है यार, को अलग से दे रहे हैं यार। नहीं, कप्तानों की मर्जी चल सकती है, मेरी यहाँ बैठ के मर्जी। अच्छा जी, आप भी परवाज का हिस्सा बनना चाहते हैं शाहीन शाह अफरीदी। जी बाबा। हारिस रऊफ। हारिस रऊफ, Right. ओके जी। बाजी भाई। हसन अली। हसन अली। मैं फिर वसीम जूनियर ले लेता हूँ। ओके आप इफ्तिखार ले लें। आप तो कमेटी में Okay, ना, I आपको नहीं will. लेना चाहिए। I've always maintained this. I always back the youngsters, so I'm gonna go with Iftikhar. Please, मुझे लगा अच्छा आप भी शायद वसीम का नाम लेने लगे। That was a different one as well. बट या आप लोगों की हेल्प हमने की है। प्लीज दिए हुए फ़ोन नंबर पे ज़रूर कॉल करें और अपने आंसर्स जो है हमें बताएं। और अब जो है हर रोज की तरह जो है टाइम हो गया है बीके के पास जाने का। बीके, व्हाट डू वी हैव आज तो इन कुछ स्टोर इन बैंगलोर टुडे? आज तो मैच की सुबह सुबह मैच की टेंशन थी, तो आज तो कुछ भी नहीं है। आज तो वैसे ही हम कुछ ब्रंच के हल्का मूड फुल्का में जो आए पका हुआ हुए वही रात वाला दे दे। रात वाला। जी, पहला है जी मादर वाडा। ये है आलू या चिकपीस की, ये ऐसे टिक्की सी बनती है। हैं। ये स्ट्रीट फूड है। स्ट्रीट फूड है, Right. डीप फ्राइड होता है, Bangalore street food. हेल्दी। और Deep fried होता है healthy। चटनी या दही के साथ ये खाया जाए। सेवरी है, मतलब मीठा नहीं है। Okay. फिर है उत्तम। उत्तम। ये रोटी जैसा है लेकिन ये राइस फ्लावर से बनता है। इसके साथ इसमें प्याज होंगे, टमाटर होंगे और ये खाया जाता है कोकोनट की चटनी के साथ। ओह वाओ। फिर जो सबसे अच्छी बात है वो है मैंगलोर बंस। आहा। ये है पूड़ियाँ, आहा, लेकिन ये इस पूड़ियों में बनानास अंदर होते हैं इसके। व्हाट? हाँ यानी जी, कि पैनकेक टाइप की कोई अलग वैरायटी। पूड़िया है देसी जो pancake बनाना more बनाना like. के साथ। और ये खाया जाता है विद स्पाइसी कोकोनट चटनी। स्पाइसी कोकोनट एक पासे मिठा, एक पासे खट्टा। खट्टा मीठा। 50-50। तो आई थिंक वो जो हमने अपना टूर करवाना है उसमें आई थिंक एक दिन फिर हमें जाना मैंने है। बैंगलोर में भी देते टूर लखनऊ का ऐसे रहा। कर्नाटका टूअर लखनऊ जी। कोकोनट कर्नाटका। कोकोनट कर्नाटका। सर अब चूंकि हमारे पास आखिरी 1-2 मिनट है, सिर्फ एक जो हम आपसे बात पूछना चाहते हैं वो ये है कि इतने लंबे टूर्नामेंट की जब बात करते हैं तो आपको लगता है कि आईसीसी को जो मेंबर्स हैं स्क्वाड के, उसकी जो लिमिटेशन है उसको ओवरहॉल करना चाहिए, उसको ओवरलुक करना चाहिए। इंजरीज जब 50 होने चाहिए। 50 तो सर ज्यादा हो जाए। कोविड टाइम में हमने देखा था ज्यादा थे। इंजरीज के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं। तो फुटबॉल में 30 प्लेयर्स होते हैं, 23 ट्रैवल कर रहे होते हैं। एनीवे आज नई चीज़ हम लेके आए हैं, मैं और बात ने मीटिंग की है जी। कि पहला ओवर जो होगा ना वो 5 रन से कम बनेंगे आज। पहले ओवर में 5 कौन Write it कराएगा? down, कोई write भी it down. कराए, हैं? कोई भी कराए, इफ्तिखार कराएंगे जो भी कराए, तो 5 रन से कम बनेंगे। ये आज नया आज नया लेकर आए। हो भी सकता है, अब आप कह रहे हैं तो मैं शक में भी डल गया हूँ कि क्या होगा या नहीं होगा। इससे पहले मुश्किल हो रही थी हमें पावर प्ले में थोड़ी सी, लेकिन हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिर वहाँ कॉनवे भी खड़े हैं साथ में, तो पहले नहीं भी वो- हो सकता। हाँ, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, जब भी तो आपके सामने रखा है। अच्छा सर, अगर फर्ज करें ये हो गया तो आप हम इनाम- आपको कोई इनाम देंगे, ठीक नहीं, है? नहीं, वो हाँ। ये कर लेते हैं, हम आपको कोई इनाम देंगे। अगर ये नहीं हुआ तो आप हमको कोई इनाम नहीं, देंगे। फिर शाम को नहीं आऊंगा मैं। पहले लो जी, पहली स्टेटमेंट आई बाजिद भाई और राशिद भाई की ज्वाइंट की जी। पहले ओवर में 5 रन से कम होंगे। अच्छा मैं भी एक पूछ लूं अब क्वेश्चन। आज केन विलियमसन खेल रहे हैं, क्या किन फिगर्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको स्कोर 75 करेंगे? बॉल पे 80 50 रन। जी 75 बॉल पे 50 रन। ओह वेरी एग्जैक्ट। 75 पे 50 आज स्लो खिला रहे हैं। आज 270-280 के हिसाब से खेल रहे हैं ना। इस पिच पे बहुत होंगे ना। एग्जैक्टली, इस पिच के लिए काफी होंगे जी। आप लोगों को क्या लगता है सर, पहले पावर प्ले में पाकिस्तान को कितने रन कंसीड करेगा पाकिस्तान? यूं कर लेते हैं, हफीज भाई और वाव भाई। पाकिस्तान को जो कंडीशंस हैं मुझे लगता है कि 50 से कम होना चाहिए। कितने? 48। 48। हाँ, वाह ये कम ही करना है ना। 42 for 2। नहीं, आप बताएं कि पावर प्ले में हम विकेट्स कितनी हासिल करेंगे? 2। आपने कहा तो है कि 2 होनी चाहिए, क्या हम हासिल करेंगे या नहीं? मेरा ख्याल है ये बस और क्या, पूरे 10 करवा दूं? करवाए जो हमने तो देखा वैसे पूछ रहा है था। इंडिया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते लोग हैं। कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, लोगों बहुत सारे को- सवाल कर बहुत दिए। ज्यादा तो देखा सारा कुछ ही हमने बता ये दिया। 2 मिनट नहीं खत्म हुए। नहीं, वरना वो लोग असल में चक्कर ये नहीं, फिर राशिद भाई को घोड़े भी तो खींचने पड़ते हैं ना। वो हम नहीं चाहते कि आपको घोड़ा खींचना पड़े। नहीं, घोड़ा तो आपके पास है ना, एक स्पॉन्सर जो जी है। जी जी, बिल्कुल हमने उसकी बात रखा करता है। हूं मैं, उसकी। उसको ऐसे करते हैं तो उसने फिर- कभी आपने खोल के नहीं दिखाया। सर वो हम इश्तिहार में दिखा देते हैं ना, फिर ऐसे लगता है जैसे रिपीट होगा। बट आई थिंक इट्स वंडरफुल। थैंक यू सो Thank you. मच जेंटलमैन। चले एक दफा बस बिफोर वी रैप अप क्विकली, व्हाट स्कोर डू यू थिंक पाकिस्तान
should restrict New Zealand to. BK, coming towards you with this one. 36 Overall inning score. मैं ओवरऑल ही बता रहा हूँ शॉट पाकिस्तान शॉट 36 पे आउट कर दें जल्दी मैच Very खत्म हो जाए। ambitious. पाकिस्तान ही याद हो भी करा दिया सकता है, आपने। हमने वो भी उन्होंने कहा शॉट तो फिर should. नहीं 270-80 अगर पार स्कोर है बस पाकिस्तान कहते चेंज हैं करेगा। आपको इतनी बड़ी वो बता दी है पहले ओवर में 5 रन और आप मतलब पहले चाहते ओवर हैं में कि 5 सारे- रन का मतलब हो गया पार में। आज अगर फोन ना आए आपको इस पैनल को तो मुझे पकड़ लेना Achha, who are your favorites, BK, for the second game, England and Australia? इंग्लैंड Wahab. पता नहीं बाद में शाम को बताएंगे आप. छुट्टी दे दो नहीं, दो ही टीमें खेल रही है। टाइम हो गया टाइम हो गया Australia. टाइम हो खत्म गया हो गया बस बंद करो राशिद सर इनका कौन जीत रहा है? कंटेंट खत्म हो गया जीत रहा है पाकिस्तान नहीं, सेकंड मैच में हाँ सेकंड में है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और जी हफीज भाई। ऑस्ट्रेलिया बता दी ऑस्ट्रेलिया. We have two for Australia. अभी One भी for एक पता मिनट नहीं रह है. गया कंटेंट खत्म हो चुका है ना आपका तो ये इस तरह लगे हुए हैं। नहीं और हम ये I think चाहते हम हैं शहजाद आपस में बात मैं करते हैं. असल में उस टाइम पे यही चाह रहा था कि मैं और आप आपस में बात कर ले और इनको थैंक यू बोल दे लेकिन चूंकि आपके पास सवाल था मैंने कहा आप जरा पूछ ले एकदम फिर कोई मसला नहीं है तो थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस इट वाज लवली टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू हमेशा अच्छा लगता है आप लोग इतना ऑन पॉइंट एनालिसिस देते हैं आज तो 5 दिनों की भी आपने बात कर दी एकदम मैं और रोहा अपने सारे पैनल पे तालियां बजाना चाहते हैं कि दैट यू गाइस आर ऑलवेज ऑन पॉइंट सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस हम जरा 1 मिनट मैं और रोहा आपस में गप लगाना चाहते हैं अगर आप लोग चलो। इजाजत दो बाजी मैंने चलें, चूंकि कह दिया नहीं, but 2 games today, a lot of action coming up on PTV Sports for all of you. और उस एक्शन के बाद फिर हम भी वापस हाजिर होंगे शाम को फॉर द पोस्ट मैच शो. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए. Enjoy the matches, enjoy the double header. Game on है.